एक मिनट मैं बोलता हूँ. हाँ, सगळं ऐकू जाईल ना तर. अरे करेला सांग, जल्दी रिकॉर्डिंग सुरू करा. हा, ऑन करून टाक. स्टुडंट कोण आहे लिस्ट आणि लग्न राहून टाकलं. स्क्रीन ऑफ कर आणि लग्न स्क्रीन ऑफ केला. हां ते गैलेक्सी M10. सर करे ऑन करो सर रिकॉर्डिंग. आपका वीडियो रमानी वीडियो मेरा वीडियो ऑन है ना? हाँ वीडियो ऑन. दिख नहीं रहे. मेरा वीडियो है ऑन. वीडियो इज ऑन. आ गया है, आगे हो गया. हाँ ठीक है. हाँ. Requesting the host to please give the करते वो शुरू हो गया. हाँ yeah. Recording is on now. Yeah. Requesting the host to give the screen sharing permissions. हाँ स्क्रीन शेयरिंग अलाउड है. देखिए एक मिनट. नहीं not yet. अच्छा आपने रीजॉइन किया, एक मिनट कर देते. दे दिया स्क्रीन शेयरिंग दे दिया. और Yes, स्क्रीन thank you. शेयरिंग. Okay. Good morning to everybody. I am S.V. Tarde, advocate, President of Notary Association Maharashtra. We are doing various activities under the platform of Notary Association Maharashtra. In the Corona period, before Corona, there was so many meetings and every quarterly meetings were there in the notaries. But after the Corona period, meeting was not possible. Actually, live meetings were not possible. So finally, we have started actually virtual meetings, and every month Saturday we used to take the meetings. We have invited various speakers on various topics, including judges or even retired high court judges to our speeches. And because of our meeting, not a notary, but all other advocates and other general public members, social activities members are got good promote activities. Some of them have started their own new business in the Corona period because of our lectures. For example, in Corona period, there was a code which actually you have to submit online file cases. So many persons have started the business of online submission of the cases. Like that, because of meetings, so many members of our association as well as few other members got the good encouragement and started their activity. Now the current topic is that means actually government of Maharashtra declared that various number of societies have not conveyed their properties in their name, and it is alertness to be made to all the members of society that instead of fighting with each other, you should cooperate and see that the land is transferred in your name. As you declared, in detail we will be hearing from the big speaker. But before that, I want to introduce that there was a number of cases which were pending. So since the government has opened a scheme to alert the people, and specifically all the deputy registrars and district registrars have been instructed, they intimate in each and every society that you get the conveyance done. In this condition, I thought why not notarization should take part in that. And in this same pattern, I've decided, and I've have a discussion with my committee members. They said, yes, we must make the people alert from our side also. So first, request to my all the notaries in the which are my members of the session, that you should see that your every office of the notary and advocate should be installed letter, a map, that please convey your land in your favor, dear society members. So every notary and advocate must keep behind his chair, that please take the benefit of the scheme and see that the conveyance of the society is done. So there will be big alertness. This is for the societies, that there it is their benefit that once the conveyance is done, you can naturally sale means do anything for the land. But other the conveyance not there, you cannot touch the building, and everything is with the builder and the landlord. So it is alertness. Now coming to today's topic. Today first thing that we have invited Mr. K.K. Ramani as the speaker, who is the author of this Deem Conveyance book.
His introduction will be given in short time by our good friend Mr. Kritin Nagda. Along with that, we are also having my secretary, Mr. Ashok Vadane from Pune. He will give one simple introduction of our nation and today's function. Then we were having actually Subhash Patil, Joint Registrar retired, who has to come for the special question answer session and comments from him. But luckily, due to unavailability, he is not available. So instead of that, and his introduction was supposed to be done by Dinesh Chandil, deputy registrar normally actually, but now we are Dinesh Chandil sir is there, and I request Dinesh Chandil sir that the role of Subhash Patil for special comments and question answer shall be taken over by him. So he will look after that question session. And I'm really surprised that at present so many question answers already started in the chatting. So we are happy that our lecture is going to be more successful, because after lecture we'll give try to give answers to maximum questions sent by chat. So that will be still successful lecture, and no doubt may some other questions may not be able to give the reply, but we'll try maximum questions are solved. My colleague Mr. Kirti Nagda, who will take over the charge for the question answer at that time. Whatever questions sent in chat will also be given, answers will be given. So going to the today's speaker, Mr. K.K. Ramani, he is none other than my guru, with whom I have learned my advocacy. From here I started my career, and he has guided me in the starting career. So I requested him that, sir, why not you give a speech? And he has accepted my speech. In short, his introduction for me is that he has started his practice in 1964. He is a president and member of various social organizations. He is also awardee of various gifts, including this and he is author of some various legal books, especially Deemed Conveyance books. So I request Mr. Kirti Nagda to give a brief introduction of Mr. K.K. Ramani, so that all the people are eager to hear Mr. K.K. Ramani on Deemed Conveyance. Thank you. Over to first Vaidande sir, and then Nagda. Yes, Vaidande sir, just unmute. Sir, unmute yourself. Vaidande. Sir, unmute yourself, Vaidande. Okay, we'll go ahead. I think he is not able to unmute. Nagda sir. Hello. Hello. Nagda. वो फिर बाला अनम्यूट वाला ना Vaidande unmute झाले का? Yes, go ahead, Vaidande sir. No, his voice is not coming. So continue, Vaidande. Please continue, Nagda sir. मला रामाणी साहेबांच्या इंट्रोडक्शनचं काम देण्यात आलं आहे, आणि रामाणी सर व्हेरी लर्नेड स्पीकर आहे आजची मीटिंगचे आपले, आणि खूप सिनियर ॲडव्होकेट आहे. त्यांनी 56 इयर्सची त्यांची प्रॅक्टिस झाली आहे. 1964 पासून ते प्रॅक्टिस करतोय. बऱ्याच लोकांच्या आपल्या पार्टिसिपंट मध्ये तेवढी एज पण झाली नसेल कदाचित, पण ही इज इन प्रॅक्टिस इन 56 इयर, अँड ही इज द यंगेस्ट लॉयर आय वुड से विथ प्रॅक्टिसिंग. आणि एकदम फुल फॉर्म मध्ये साहेब प्रॅक्टिस करतात, आणि ते फक्त लॉयर म्हणून प्रॅक्टिस करतात ते तर ठीक आहे, पण त्यांची व्हेरियस टाइप्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज आहे. आय जस्ट टेल इन शॉर्ट. साहेबांनी 11 प्रकारची वेगवेगळी पुस्तक लिहिलेली आहे, आणि ते 11 वेगळे सब्जेक्ट आहे, पूर्ण वेगळे सब्जेक्ट आहे. आता मी जस्ट एक वाचतोय की साहेबांनी विल आणि नॉमिनेशन सक्सेशनवर पुस्तक लिहिलंय, डीम्ड कन्व्हेन्सवर पुस्तक आहे त्यांच्या, मग रिडेव्हलपमेंट ऑफ हाऊसिंग सोसायटीवर पुस्तक आहे, मग LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिपवर पण त्यांच्या पुस्तक आहे की कसे फॉर्म करायचे, त्यांची राईट, LLP ची राईट्स वगैरे काय, पार्टनरचे राईट काय आहे, कॅपिटल गेन्सवर पण पुस्तक लिहिलेलं आहे साहेबांनी. साहेबांच्या मी तुम्हाला सांगतो की अपार्ट फ्रॉम त्यांची हे लिगल ह्याच्यामध्ये तर आहे नॅक त्यांची, पण ते इन्कम टॅक्सवर पण त्यांची नॅक खूप चांगली आहे. देन दी टॅक्सेशन ऑफ ब्लॅक मनी स्लॅब अब्रॉड, तसा पण त्यांची एक पुस्तक आहे. मग डुईंग बिझनेस इन इंडिया, मग VDIFF स्कीम आलेली 1990, व्हॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने दिलेली 1997, त्याच्यावर साहेबांचं पुस्तक आहे. मग NRI गाईड म्हणून त्यांची पुस्तक आहे. फेमा मॅन्युअल, फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट, त्याच्यावर साहेबांचं पुस्तक आहे. आणि रेमिटन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन्व्हेस्टमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड अँड व्हॉलंटरी डिपॉझिट
ऍक्ट 1991, हे पण एक इन्कम टॅक्सचा पार्ट होता. म्हणजे साहेबांच्या विविध प्रकारच्या बुका आहेत आणि त्यांच्यात तुम्ही समजू शकतात की त्यांच्या कमांड केवढे ऍक्टवर आहे, केवढे वेगळे वेगळे सब्जेक्टवर साहेबांच्या कमांड आहे. सेकंडली साहेब स्पीकर पण आहे आणि खूप इन्स्टिट्यूट मध्ये लेक्चर्स दिलेले. आय वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपंट, आय वॉज इन द ऑडियन्स ऑफ वन ऑफ द लेक्चर. आणि ते चेंबर ऑफ इन्कम टॅक्स कन्सल्टंट मध्ये पण लेक्चर देतात, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटंट सोसायटी मध्ये देतात, लायन्स क्लब मध्ये देतात, फोरम ऑफ फ्री एंटरप्राइज, दूरदर्शन, व्ही टीव्ही, इन मुंबई, CNBC, सगळ्यांवर साहेबांचे गेस्ट स्पीकर म्हणून त्यांच्या लेक्चर्स येतात. आणि त्यानंतर साहेबांचे वेगळे वेगळे आर्टिकल्स पण पब्लिश झालेले आहेत. त्यांचे आर्टिकल्स नॉर्मली इन्कम टॅक्स रिव्ह्यू म्हणून ते चेंबर ऑफ इन्कम टॅक्स कन्सल्टंटची पुस्तक येतात प्रत्येक महिन्यानी, त्याच्यामध्ये त्यांचे आर्टिकल्स येतात. बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटंट सोसायटीची जर्नल आहे, त्याच्यामध्ये आर्टिकल्स येतात. फायनान्शियल एक्सप्रेस आणि इकॉनॉमिक टाइम्स पेपर मध्ये पण त्यांचे आर्टिकल येतात. आणि चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंटचे रेग्युलर त्यांचे जे काय मॅगझिन्स येतात त्याच्यामध्ये साहेबांचे आर्टिकल येतात. साहेबांनी एक सामाजिक कारणामध्ये पण खूप खूप कंट्रीब्युशन केलेले आहेत. साहेब रामकृष्ण मिशन खारला जे संस्था आहे त्यांच्याशी अटॅच आहे. ते रामकृष्ण मिशनची एक हॉस्पिटल सुद्धा आहे, त्याच्यामध्ये साहेब कार्यरत आहे. मग ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ डायबिटीस, ते FL राहेजा हॉस्पिटल मुंबईमध्ये आहेत, साहेब त्यांच्याशी पण संलग्न आहे. दी मेंबर्स ऑफ गव्हर्नमेंट कमिटी, ट्रायपार्टी नॅशनल कमिटी ऑन हेल्थ, फॅमिली वेलफेअर अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ HIV, एड्स, नॅशनल एड्स कमिटी, त्याच्यामध्ये साहेब पण पार्टिसिपेट करतात. नंतर साहेबांना वेगवेगळे अवॉर्ड सुद्धा भेटलेले आहे. मदर टेरेसा इंटरनॅशनल अवॉर्ड साहेबांना 2015 मध्ये देण्यात आला. नंतर LK अडवाणी साहेब होते, त्यांचे हस्तक त्यांना, ते डेप्युटी प्राईम मिनिस्टर होते आपले, त्यांचे हस्तक त्यांना एक सोशल कारणामुळे त्यांना अवॉर्ड देण्यात आला होता. राम जेठमलानी फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, त्यांनी पण त्यांना एक अवॉर्ड दिला होता, ग्लोबल अवॉर्ड फॉर ग्लोबल सिंधी काउन्सिल, त्याच्यासाठी त्यांना अवॉर्ड देण्यात आलेला. साहेब खूप खूप संस्थांमध्ये पण कार्यरत असल्यामुळे त्यांचे वेगवेगळे संस्थांमध्ये पण त्यांचे पद आहेत. ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंट. 1984 आणि 86 वर्षामध्ये साहेब चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंटचे प्रमुख होते. ते चेअरमॅन होते वेस्टर्न झोन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन आहे, त्यांच्यामध्ये पण ते चेअरमॅन म्हणून होते. He was many years he was an editor of Income Tax Review. Income Tax Review एक एवढी चांगली पुस्तक आहे जे चेंबर ऑफ इन्कम टॅक्स कन्सल्टंट एव्हरी मंथ ते हे प्रकाशित करतात. त्याच्यामध्ये साहेब एडिटर म्हणून काम केलेले आहेत. then मेंबर ऑफ व्हॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इन्कम स्कीम कमिटी, एक कमिटी नेमण्यात आलेली व्हॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम साठी, VDS स्कीम होती गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटची, साहेब त्याच्यामध्ये पण कमिटी मेंबर होते. देन दी राईट नाव द मेंबर इन कर विवाद समाधान स्कीम, साहेब त्यांचे पण ते कमिटीमध्ये पण साहेब मेंबर आहे. असे साहेब आपले खूप लर्नेड, खूप सिनियर आणि एक पर्सनली मी सांगू की चांगले मित्र, वेल विशर, गायडर. तुम्ही काही पण प्रश्न घेऊन त्यांच्याकडे जा, इमिजिएटली तुम्हाला आन्सर मिळतील. दो यू मे बी ज्युनियर बट ही नेव्हर शोज दॅट दी आय एम ए सिनियर. ही सो फ्रेंडली. आणि तसे आपले स्पीकरला मी इंट्रोड्यूस करतोय. आणि थँक्यू टाटे साहेब की मला तुम्ही अपॉर्च्युनिटी दिली रामाणी साहेबांच्या इंट्रोडक्शन करायला. आणि माझ्या लाईफ लॉंग एक चांगला अनुभव विश राहील की आय हॅव इंट्रोड्यूस रामाणी सर इन माय लाईफ. आणि तुमचे तर सिनियरच होते आणि तुमचे वेल विशर गायडर आहेतच. अँड नाव ही विल बी ए गायडर टू ऑल द पार्टिसिपंट्स हू आर हिअर. थँक्यू व्हेरी मच. ओव्हर टू वायदंडे साहेब सर. Vadan is not able to speak now. No. ठीक है. मग 30 I request, yes, I'll see that. Thanks, Kirti Nadaji, for introducing. But I think this introduction is because of online meeting and little bit virtual short meeting, we are unable to elaborate our Ramani's career means more and more about him. Still, we'll know his knowledge in this current meeting itself. And so I'm sure that you can just take his number also in case of emergency. Further, if you want, I'll just give the number to everybody. You can write it. So after question and answer, you can send a question on chatting to Mr. Ramani also. So just you can take the numbers, those who want it. 99204
99204 97531. You can send your questions to Mr. Ramani, and you can have a good contact with him on this deemed conveyance issue. So I request Mr. Ramani to go ahead with the knowledgeable speech on deemed conveyance. Yes, sir. Ramani, sir. क्या हो रहा Not share the screen for some है? नहीं, reason. मेरा दिखाई दे रहा है? Am I audible and visible? Yes, yes, everything is right. Perfect. चलो ठीक है, रहने दो। हाँ, बस Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good. प्रेसिडेंट ऑफ नोटरी एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र श्री एस वी तारते, सेक्रेटरी श्री अशोक वायदंडे, माय वेरी डियर फ्रेंड कीर्ति नागदा जी, जिन्होंने इतना विस्तार से मेरे बारे में कहा, श्री दिनेश टांडेल जी, और दूसरे भी जो अन्य उपस्थित सज्जन हैं, उन सबको मैं पहले उनका सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। और इस आज की जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है उसके लिए मैं मिस्टर तरते का आभारी रहूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको जानना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत से लोगों ने, बहुत सी सोसाइटियां ऐसी हैं जिन्होंने इसके बारे में कभी कुछ सोचा भी नहीं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ड्राइव भी शुरू की है। अब ये सबसे पहले तो सवाल ये आता है, प्रश्न उठता है कि व्हाई कन्वेंस इज इंपॉर्टेंट। कन्वेंस का विषय महत्वपूर्ण क्यों है, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। मैं कहूंगा, आप मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक अलॉटी हैं। मेरा शेयर हो रही है, स्क्रीन नहीं हो रही है पहले तो? Yes, yes. नहीं, मुझे तो नहीं नहीं हो दिखाई। रहा है, तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट, हमने तो फ्री कर दिया है। एक मिनट बेटा, स्क्रीन शेयर करो ना। Screen share isn't वो जो- happening with नहीं हो रहा, वो करो ना पहले, उनके बिना कैसे लेते? Post has disabled participants screen sharing. नहीं किया मेरे ख्याल, स्क्रीन शेयर अलाउ नहीं एक किया। सेकंड। बाथरूम से ओके होंगे। उधर था ना, कैसे होगा? नहीं, वो अपने ज्वाइन वापस किया है, उसमें चेंज हो। एक मिनट। Can you just make us the co-host or something? That would be. मेरे ख्याल से को होस्ट करेंगे तो शायद हो जाएगा। एक मिनट कर रहा हूँ, एक सेकंड, जस्ट होल्ड। रिमूव स्पॉटलाइट कर दें। नहीं, आप है। श्री, अगर नहीं होता तो वैसे भी चला सकते हैं, कोई बड़ी बात किया नहीं। किया ओके, शुरू करूं? एक सेकंड हो गया, ओपन कर दिया। Yes, 1 second. दिया, ओपन कर दिया है। हाँ हो रहा है। इसको इधर हटा दें। दिखा देना ये। हाँ, ये इसको जरा करना। आ गया। आ जाए। Messing up. Just give us 1 second. थोड़ा बड़ा कर दे इसको, नहीं तो इतना ही Can I just sit for 1 second? ठीक है। मैं बाथरूम से उतारता हूं। By the way, for the audience, Ramani is a good author for various books, and maximum all the books are written in English.
but he was also originally thinking give the speech in English. But मैं specifically सबको बताया कि सर आप हिंदी में रहेंगे तो everyone will understand what is the inconvenience. तो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने खास हिंदी में स्पीच रखा है. Otherwise it was supposed to be in the English. Another thing is that a number is given specifically to all to get benefit of the dim convenience, but he is a very big shot, so his number is very restricted. So you just send a message to him so that his operator or PA will contact with you. So whenever you are interested to do anything about the dim convenience, you can call him, but not on the phone. Just send a message on the phone so that his operator will reply you. The other number is given to on the landline number just now on the screen. That is 022 2651 6611. So you can for contacting you contact Mr. Ramani on this number, and specifically conveyance and dim conveyance, he is, will help you. He has got number of assistants who will reply you on this issue. So by the time he was sharing the screen, I just given the proper message information to you, so you can have the touch on this number. Yes, Ramani is back to screen. Go ahead, sir. ये सबसे जो पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि why conveyance is important for any society. कन्वेंस का सोसाइटीज के लिए क्या महत्व है, ये महत्व विषय क्यों महत्वपूर्ण है? मैं कहूँगा सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सपोजिंग यू आर एन अलॉटी ऑफ ए रेजिडेंशियल फ्लैट, आपने कोई रेजिडेंशियल फ्लैट किसी सोसाइटी में लिया हुआ है और आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, आपको सोसाइटी ने परमिशन दी है कि आप रेजिडेंशियल फ्लैट को कमर्शियल में कन्वर्ट करें. अब बिल्डिंग बनी थी 1950 में, पर बिल्डर ने कन्वेंस अभी तक दिया नहीं और प्रॉपर्टी कार्ड में सोसाइटी का नाम आया नहीं. हालांकि आपको सोसाइटी ने ऑथोराइज किया है, कंसेंट भी दी है कि आप रेजिडेंशियल फ्लैट को कमर्शियल में करवा डालो, फिर भी आप नहीं करवा सकेंगे. क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड में आपका नाम नहीं है. और यही रीजन है कि रीडेवलपमेंट के लिए मतलब वो लोग बिल्डर लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी कार्ड में सोसाइटी का नाम नहीं आए ताकि बिल्डर लोग अपना टीडीआर वगैरह यूज कर सकें. थोड़ा शॉर्ट कर दो. अब इसके हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है. अब पहले जो था बिफोर मतलब 2010 बहुत सी सोसाइटी ने गवर्नमेंट को लिखा, लोग सूट फाइल किया करते थे एज पर मोफा के हिसाब से, पर सूट फाइल करने में खर्चा बहुत होता था और टाइम भी बहुत लगता था. इसके लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत से गए, तो लोगों मतलब एक मिनट, इसको ये छोटा कर दे, इसको एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इधर, इसको छोटा कर देना, यहाँ से छोटा क्यों नहीं होता? वो पास में नाम आ रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है पावर पॉइंट्स पे. नहीं, इसको छोटा कर दो ना ये सब. So sorry. बाबा ठीक है, ऐसे रहने दे. हाँ चल, अब ठीक. I think you don't go anywhere. नहीं आ रहा आगे, बहुत अटक रहा है, ऐसा मुसीबत छोड़ देने. क्या हो रहा है इसे? हाँ. तो हाँ सॉरी, मतलब ये अब ठीक है. आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट द बिल्डर फॉर द कन्वेंस, आखिर गवर्नमेंट ने विचार किया कि हम लोग कुछ ऐसा प्रोविजन लाएं ताकि कन्वेंस जो है सोसाइटी के नाम से बहुत आसानी से मिल सके. जनरल लॉ में हमेशा ट्रांसफर डीड होती है बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, जो बेचने वाला और खरीद करने वाला. उसमें सिग्नेचर जो है ओनर्स के बहुत आवश्यक होते हैं. पर कई सोसाइटीज में जहां पर पुरानी सोसाइटीज बननी थी 1950-60 में, ये देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने कन्वेंस डीड पर सिग्नेचर किए थे वो उसका स्वर्गवास हो गया है, उसके कुछ बच्चे हैं,
कुछ भारत में हैं, कुछ भारत के बाहर हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कन्वेंस डीड पे उन सबके सिग्नेचर लिए जाए। तो अब इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए? तो गवर्नमेंट ने बहुत विचार विमर्श के बाद ये डिसाइड किया कि हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज अपॉइंट करते हैं, उनको पावर दिया जाएगा कि जो कि लैंड ओनर्स और डेवलपर के बिहाफ से कन्वेंस डीड पे साइन कर सके। और ये इस हिसाब से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब ये जो कंसेप्ट है अपने मोफा में डाला गया। अब ये जो सब्जेक्ट है अपने डीम्ड कन्वेंस का पूरा मोफा एक्ट और रूल्स में है। इसके लिए आवश्यक होगा कि हम मोफा के कुछ जो टर्म्स हैं वो और कुछ जो प्रावधान है उनको समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले जो मुख्य पहले इंपॉर्टेंट जो वर्ड आता है मोफा में वो है फ्लैट। फ्लैट मीन्स ए सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ प्रीमाइसेस। सेपरेट का मतलब होता है सेपरेट एक्सेस। ग्राउंड फ्लोर से अगर फ्लैट है ग्राउंड फ्लोर पर तो पैसे से एक्सेस मिलेगी, ऊपर है तो लॉबी से मिलेगी। तो सेपरेट एक्सेस एंड सेपरेट यूज एंड सेल्फ कंटेन्ड मतलब उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए सैनिटरी की, कुकिंग वगैरह की, तभी जाकर वो फ्लैट गिना जाएगा। अब यदि किसी चाल में 3-4 फ्लैट हैं और बाहर से बाथरूम टॉयलेट वगैरह बाहर से दिया गया है तो उसको भी फ्लैट की डेफिनेशन में करने के लिए समाविष्ट करने के लिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन डाला कि नॉटविथस्टैंडिंग द प्रोविजन इज मेड फॉर सैनिटरी वॉशिंग एंड अदर कन्वीनियंस एज कॉमन टू 2 or more persons, still the premises shall be considered as separate and self contained। और उनको भी मोफा के जो प्रावधान है उनको फ्लैट माना जाएगा ताकि वो प्रावधानों का लाभ ले सकें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रवर्तक की या प्रमोटर की है। ये प्रवर्तक एज पर बॉम्बे हाई कोर्ट ही कैन बी द ओनर ऑफ लैंड, फ्री होल्ड ओनर ऑफ द लैंड, he can be the lessee of the land and he can be the developer। Promoter means a person who constructs or causes to be constructed a block of building flats for the purpose of selling। यदि आप अपने लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, अपने फ्लैट्स किराए पे देंगे, बेचेंगे नहीं, तो वो प्रमोटर नहीं बनता। और दूसरी बात उन्होंने कही है एंड वेयर द पर्सन हु बिल्ड्स and who sells are different person, term will include both। आप एक उदाहरण लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जो कि जमीन का मालिक है उसने अपने किसी बिल्डर को डेवलपर को अपॉइंट किया, उसको कहा भाई बिल्डिंग में जितने फ्लैट्स बनेंगे आधे तुम बेचना आधे मैं बेचूंगा, बाकी सब खर्चा तुम करोगे, जमीन मेरी होगी। तो ऐसे केसेस में जब डीम्ड कन्वेंस के लिए या कन्वेंस के लिए सूट या एप्लीकेशन फाइल की गई थी तो लैंड ओनर ने कहा भाई हम तो डेवलपर नहीं है, हम तो प्रमोटर नहीं है, तो आप हमको पार्टी नहीं बना सकते। तो हाई कोर्ट में ये जो फरहद कोऑपरेटिव सोसाइटी मलकानी एंटरप्राइज में ये व्यू लिया, उन्होंने कहा कि आप देखिए द पर्सन हु बिल्ड्स एंड द पर्सन हु सेल्स आर डिफरेंट पर्सन, देन प्रमोटर टर्म शेल इंक्लूड बोथ ऑफ देम। तो इस आधार पे ये जो फरसद रिट पिटिशन फरहद कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस मलकानी एंटरप्राइज और ऐसे कई और भी केस हैं जहां पर अक्सर देखा गया है कि फैमिली ओन्ड लैंड है तो वो अपनी कंपनी बना लेते हैं, कंपनी बिकम्स बिल्डर और फ्लैट्स बेचते हैं। तो जो ओनर होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई हम तो ओनर हैं, हम तो जमीन के ओनर हैं, हम प्रमोटर नहीं है। तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जमीन के जो ओनर हैं वो भी प्रमोटर गिने जाएंगे और डीडीआर को पावर रहेगा कि जमीन के ओनर के लिए जितने भी प्रीडिसेसर इन टाइटल हैं उन सबकी ओर से यूनिलेटरल डीड में साइन करके प्रॉपर टाइटल सोसाइटी को पहुंचाए। अब हमेशा जो एग्रीमेंट होता है नॉर्मली एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जनरल लॉ ओरल एग्रीमेंट हो सकता है। जनरल लॉ अगर हम लोग कोई लैंड का एक्ट मतलब कोई बनाए एग्रीमेंट तो जरूरी नहीं है कि टर्म्स 20% के बाद रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ये सब बातें कैसे होनी चाहिए, क्या क्या
मतलब मैंडेटरी क्लॉजेस होनी चाहिए, वो सब जनरल लॉ में एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन मोफा में ये कायदा बनाया गया कि एग्रीमेंट शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म 5 और उसके अंदर कुछ क्लॉजेस ऑब्लिगेटरी हैं, अनिवार्य हैं। अब एग्रीमेंट हैज टू बी इन राइटिंग, ओरल नहीं बन सकता। इट शुड बी इन कंफर्मिटी फॉर्म 5 गिवन इन द रूल्स, और कुछ क्लॉजेस बहुत मैंडेटरी हैं। उसमें से देखा जाए तो सेक्शन 4(1)(a) कहता है कि ये अनिवार्य होगा कि कॉमन एरिया भी प्रिस्क्राइब किया जाए, उसको बताया जाए कॉमन एरिया क्या होता है। और कॉमन एरिया हालांकि मोफा में नहीं, पर महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में डिफाइन किया गया है, उसके अनुसार लैंड भी कॉमन एरिया में आता है। यदि कॉमन एरिया के आप इंटरेस्ट स्पेसिफाई करेंगे तो मतलब पूरी एफएसआई खत्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बिल्डर अक्सर ये कॉमन एरिया एंड फैसिलिटीज है विस्तार से नहीं बताते। अब जो ज्यादातर बिल्डर जो होते हैं वो अक्सर, जिसने बिल्डिंग पहले बनाई, वो नहीं चाहते कि सोसाइटी मालिक बने। और खास करके जब से ये टीडीआर का कंसेप्ट आया है तो बिल्डरों ने मतलब अपना सोसाइटी अपना कोशिश करते हैं कि टीडीआर भी जहां पर यदि साथ में कोई गार्डन हो तो हम अपना बना डालें। तो वो अपनी एफएसआई यूज करना चाहते हैं, बैलेंस एडिशनल एफएसआई एंड टीडीआर। इसके बारे में हमें आवश्यक होगा कि हम सेक्शन 7 जो है उसको थोड़ा समझ लें। मोफा का सेक्शन 7 कहता है प्रमोटर नीड्स कंसेंट परचेजर फॉर अल्टरेशन ऑफ हिज फ्लैट। यदि किसी व्यक्ति ने कोई फ्लैट लिया है, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन करना चाहे तो मोफा प्रमोटर उसके व्यक्ति की परमिशन के बिना, सहमति के बिना नहीं कर सकता। और यदि उस बिल्डिंग में कोई एडिशन करना चाहे, प्रमोटर नीड कंसेंट ऑफ ऑल द परचेजर्स ऑफ एडिशनल स्ट्रक्चर। ये ओल्ड था। इसके बाद एक केस में ऐसा हुआ कि कल्पिता एनक्लेव, बड़ी जमीन थी, लैंड लेआउट का लैंड था, बिल्डिंग बनी तो सोसाइटी ने प्रमोटर के ऊपर स्टे ले लिया, कहा भाई परचेजर आपने जो एडिशनल स्ट्रक्चर बना रहे हो हमारी परमिशन के बिना नहीं बना सकते। तो ये मैटर काफी चला और उसके बाद कॉमर्स हाउस का भी जजमेंट आया। तो बाद में गवर्नमेंट ने अमेंड किया 12/11/86 को सेक्शन 7 और 7(a) डाल दिया कि प्रमोटर कैन कंस्ट्रक्ट एडिशनल स्ट्रक्चर और बिल्डिंग इन ए लेआउट इफ द प्लान्स आर सैंक्शन्ड बाय द अथॉरिटी एंड डिस्क्लोज टू द परचेजर। और ये जो व्यू है प्रमोटर कैन कंस्ट्रक्ट एडिशनल स्ट्रक्चर, पहले इसका था, इसकी जो व्याख्या की है बहुत सी कोर्ट्स ने की है और जयंतीलाल इन्वेस्टमेंट वर्सेस मधु विहार में इस सेक्शन 7(a) की बहुत मतलब माइन्यूटली व्याख्या की गई है। इसके अनुसार यदि शुरू में से 1980 में बिल्डिंग बनी, उस समय एफएसआई 0.75 थी, चैम्बूर में जैसे 0.5 एफएसआई थी, बिल्डर ने पूरी एफएसआई यूज कर ली और लेआउट प्लान के हिसाब से कुछ भी एफएसआई बाकी नहीं रही। बाद में जब एफएसआई 0.5 की 1 हो गई और आजकल टीडीआर भी अलाउ हो गया चैम्बूर के एरिया में, तो कई लोगों ने, कई बिल्डरों ने चेष्टा की कि वो एफएसआई भी अनकंज्यूम्ड एफएसआई को दे दें, यूज कर लें और टीडीआर भी यूज करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में, मधु विहार के, ये कांदिवली का केस है, इसके अंदर ये कहा कि भाई नहीं, यदि आपने अपने प्लान्स डिस्क्लोज किए हैं, लेआउट प्लान डिस्क्लोज किया है, अप्रूव्ड है, डिस्क्लोज किया है, तो आप वो स्ट्रक्चर उसके बाद नहीं बना सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि बिल्डर चाहते हैं कि उनको टीडीआर का बेनिफिट वो यूज करें, लेकिन सोसाइटीज को चाहिए, ये मधु विहार का सोसाइटी का जजमेंट और रविंद्र मुतनेजा, वो जजमेंट जरूर पढ़ लें। रविंद्र मुतनेजा वर्सेस भवन कॉरपोरेशन में ये साफ लिखा है उन्होंने जजमेंट में कि यदि बिल्डिंग बन गई है एज पर द प्लान, जब बिल्डिंग बनी थी, जिस प्लान को देखकर लोगों ने फ्लैट लिए हैं, यदि उसके अनुसार बिल्डिंग बन गई है और उसके बाद
बिल्डर को कोई हक नहीं रहता कि एडिशनल एफएसआई यूज करे। वो एफएसआई चाहे कन्वेंस हो या ना हो, उस सोसाइटी की गिनी जाएगी। बेटा ये नहीं आ रहा। हाँ, अब हम आते हैं सेक्शन 11 पर, जिसमें साफ लिखा है प्रमोटर टू कन्वे द टाइटल ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग। उस जमीन तथा इमारत का जितना भी टाइटल है, कन्वेंस है, उसको सोसाइटी को देना चाहिए। यदि नहीं देता तो सोसाइटी को अधिकार रहेगा कि डीम्ड कन्वेंस में जाके ऑर्डर और सर्टिफिकेट ले और अपना प्रॉपर्टी कार्ड दुरुस्त करवाए। अब 2010 में इसके रूल्स आए थे, उसके बाद कई सर्कुलर नोटिफिकेशन आते गए, लेकिन आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण सर्कुलर आया है वो जीआर निकला है, वो 2018 22 जून 2018 को गवर्नमेंट ने डीम्ड कन्वेंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जीआर इशू किया है। अब उस जीआर के अनुसार डीम्ड कन्वेंस पाने के लिए हर सोसाइटी को 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहला है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 7। जो एप्लीकेशन है, पहले तो हम लोग केवल ऑफलाइन हार्ड कॉपी फाइल करते थे, अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फाइल करनी पड़ेंगी। एडजुडिकेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, उसका निर्णय होना चाहिए। अभी निर्णय कितना स्टैम्प ड्यूटी कितनी आती है, हर एक है, मैं आगे चल के उसके ऊपर डील करता हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ डीम्ड कन्वेंस डीड, और यदि डीम्ड कन्वेंस डीड रजिस्टर हो गई तो उसके बाद आप जाएंगे रेवेन्यू अथॉरिटीज में और अपना प्रॉपर्टी कार्ड अपने नाम से करवा लेंगे। एक बार आपने अपने नाम से प्रॉपर्टी कार्ड करवा लिया तो आप सचमुच आप लीगल ओनर उस प्रॉपर्टी के बन जाते हैं। अब सबसे पहले जो स्टेप आता है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर डीम्ड कन्वेंस। और केवल वही सोसाइटियां हैं जो डीम्ड कन्वेंस की एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं जो महासहकार मतलब गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है महासरकार.महाराष्ट्र.gov.in में रजिस्टर्ड हों। यदि नहीं है तो वैसे भी सोसाइटी को रजिस्टर करना चाहिए महासहकार पर यदि नहीं है तो पहले सोसाइटी को महासहकार की साइट पर जाकर के अपनी सोसाइटी को रजिस्टर कराना परम आवश्यक है। अब ये जो फॉर्म आप देखते हैं ऑनलाइन सोसाइटी एनरोलमेंट एप्लीकेशन है, इसका भरना बहुत जरूरी है। और इसमें जो आप भरेंगे, ये जो महासहकार.महाराष्ट्र.gov.in, ये तब ऑनलाइन सोसाइटी एनरोलमेंट फॉर्म मिलेगा, वो आपको भरना पड़ेगा। उसके साथ कुछ फॉर्म अनेक्सर देने पड़ेंगे जो मैं आपको बताता हूं। इसमें जो है आपको अपनी सोसाइटी की ईमेल देनी पड़ेगी, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, कौन सा वार्ड है वो बताना पड़ेगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, एड्रेस ऑफ द सोसाइटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एड्रेस ऑफ द सोसाइटी व्हेन यू आर फाइलिंग दिस एप्लीकेशन, नेम ऑफ द सोसाइटी, डिटेल एड्रेस ऑफ द सोसाइटी, चेयरमैन का नाम, उसका मोबाइल नंबर, सेक्रेटरी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, कितने मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ फ्लैट्स, शॉप्स, टेनिमेंट्स, शेयर कैपिटल ऑफ द सोसाइटी, डेट ऑफ लास्ट इलेक्शन, डेट ऑफ लास्ट एजीएम, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, टोटल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन। ये कोई सोसाइटी का सेक्रेटरी, चेयरमैन भी हो सकता है या तो कोई मैनेजर भी हो सकता है जिसका आप डिटेल देने पड़ेंगे। अब आपने सोसाइटी को महासहकार की वेबसाइट पर एनरोल कर दिया तो उसके बाद आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार की ऑफिस में संपर्क करना पड़ेगा और उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी
कि ये वैलिडेशन आपकी सोसाइटी का कर दे। वो जब वैलिडेशन करते हैं तो उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 में फाइल कर सकेंगे। अब यदि आपने वहां इसमें सोसाइटी में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद वैलिडेशन भी करवा लिया, तो उसके बाद आपको डीम्ड कन्वेंस जो मैनेजमेंट सिस्टम है, एप्लीकेशन फॉर डीम्ड कन्वेंस ऑनलाइन फॉर्म नंबर 7 तथा अनेक्सर आपको देने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है उसकी वेबसाइट का। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, मैं उसका भी आपको वर्णन शॉर्ट में कर देता हूं। एप्लीकेशन इन फॉर्म 7 फॉर डीम्ड कन्वेंस, copy of registration certificate, particulars of the applicant society and copy of resolution regarding deemed conveyance, recent extract of property card, list of legal flat holders, illegal notice issued to the promoter by the society। मतलब एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आपको जितने भी लैंड ओनर वगैरह प्रमोटर डेवलपर हैं सबको नोटिस देना पड़ेगा कि आप प्लीज हमको कन्वे कर दो, नहीं तो हम लोग डीम्ड कन्वेंस में जाएंगे। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट था ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यदि नहीं हो तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पहले से एक्चुअली लिखा हुआ था पुराने सर्कुलर में, इफ अवेलेबल, किंतु कुछ अथॉरिटीज ने ये भी लिया कि ऑब्लिगेटरी है। और खास करके कैंपा कोला सोसाइटी में जब उनको ऑर्डर मिला, कैंपा कोला में जरा मुश्किल था, वो हमने हमारी ऑफिस ने हमने काम किया था, तो हमने ऑर्डर लिया। उसके बाद जब एडजुडिकेशन में गए तो कलेक्टर ऑफ सेम ने कहा नहीं, आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं आपके एडजुडिकेट डॉक्यूमेंट नहीं करूंगी। मैं समझता हूँ ये उनका जुरिसडिक्शन नहीं था, पर फिर भी कुछ राजनीतिक दबाव था, पता नहीं क्या कारण था, समझ में नहीं आता, उन्होंने डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं किया। पर भाग्य से कैंपा कोला को जब डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर मिला तो उसके बाद उनको बिल्डिंग डिमोलिशन बच गया। अब कोर्ट फीस स्टैम्प हमें 2000 रुपए की देनी पड़ती है, वो हम चाहें तो ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें, लेकिन 2000 रुपए गवर्नमेंट को कोर्ट फीस स्टैम्प मिलना चाहिए। और सोसाइटी को सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि सभी जो है डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल किए हैं वो सब सच्चे हैं, ठीक है, सही है। अब एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल हो गई तो उसके बाद आपको फिर से ऑफलाइन भी फाइल करनी पड़ेगी। अब उसमें जो एक एप्लीकेशन फॉर डीम्ड कन्वेंस इन फॉर्म नंबर 7 विथ शोइंग पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, और जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल की थी वहां पर एक डीसी नंबर जनरेट होता है, वो कॉपी ऑफ द फॉर्म नंबर 7 अलॉन्ग विद द डीसी नंबर ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। कोई भी एक ओनरशिप एग्रीमेंट जो आपने एंटर किया है बिल्डर के साथ, वो इंडेक्स 2 आपको देना पड़ेगा। और फाइनल सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान विच वाज अप्रूव्ड बाय द प्रमोटर फ्रॉम द कंपनी अथॉरिटी, ये सब आपको चीजें देनी पड़ेगी। अब एक बार आपकी एप्लीकेशन फाइल हो गई, अब यहां से फिर डीडीआर की ऑफिस एक्टिवेट हो जाती है। डीडीआर के ऑफिस में जब देखते हैं कि फॉर्म नंबर 7 मिल गया है तो उसको वेरीफाई करते हैं, कोई डिटेल अधूरी तो नहीं, कोई चीज बाकी तो नहीं। यदि उसमें कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो फॉर्म नंबर 8 देते हैं सोसाइटी को फॉर कंप्लायंस। कंप्लायंस के बाद जब सब चीजें कंप्लाई हो जाती हैं, रिक्वायरमेंट सब मिल जाती हैं उनको, तो डीडीआर की ऑफिस फॉर्म नंबर 10 इशू करती है नोटिस के लिए। एंड कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मर गए हैं, कुछ बिल्डर के ऊपर उनकी ऑफिस बंद हो गई है, नोटिस सर्व नहीं हुआ, हियरिंग में जब नहीं आते, तो फॉर्म नंबर 13 डीडीआर कहते हैं सोसाइटी को, आप पब्लिक नोटिस बनाइए फॉर्म नंबर 13 जो अखबारों में आना चाहिए, 2 अखबारों में, ताकि कोई ये ब्लेम नहीं कर सके कि हमने सर्विस बराबर नहीं की। तो फॉर्म नंबर 13 भी दिया जाता है यदि नोटिस सर्व न हो और अपोजिट साइड वाले बिल्डर और लैंड ओनर अपीयर न हो, तो उस हालात में फॉर्म 13 भी दिया जाता है। जब हियरिंग होती है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है डीडीआर को, तो डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर और सर्टिफिकेट
इशू किया जाता है। ये एक स्टेप हमारा उसमें पूरा हो जाता है। अब दूसरी बारी आती है, एक आपने डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर ले लिया, डीम्ड कन्वेंस का सर्टिफिकेट लिया। अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो चाहिए, क्योंकि कई एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पूरी भरी नहीं होती। अब उसमें एडजुडिकेशन स्टैंप ड्यूटी होना आवश्यक है, उसके बिना कोई भी कन्वेंस रजिस्टर नहीं हो सकता। अब जब हमें मतलब डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर और सर्टिफिकेट मिल जाता है सोसाइटीज को, तो सोसाइटी को एक प्रपोज्ड कन्वेंस बनाना पड़ जाता है और डीडीआर को बताना पड़ जाता है। और जब डीडीआर उनको अप्रूव करता है, उस कन्वेंस में कोई मिस्टेक उनको ठीक लगती हो, तो अपने सुझावों के साथ ठीक करने के बाद अपने कवरिंग लेटर के साथ वो डीम्ड कन्वेंस डीड का ड्राफ्ट जो होता है, अप्रूव ड्राफ्ट, वो अपने एडजुडिकेशन के लिए कलेक्टर को भेजते हैं। अब जब कलेक्टर के पास आता है तो पहले कलेक्टर ये देखता है कि उस समय जमीन की जितनी एफएसआई अवेलेबल थी, बिल्डर ने पूरी एफएसआई का कंज्यूम किया है या नहीं। यदि अनयूज्ड एफएसआई है तो उसकी मार्केट वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद जितने भी एग्रीमेंट है, सब एग्रीमेंट्स पे स्टैंप ड्यूटी बराबर दी गई है या नहीं दी गई है, वो सब चेक कर किया जाता है। और ये जो स्टैंप ड्यूटी का कंपटीशन है, इसके बारे में आईजीआर ने 12 अप्रैल 2012 में एक सर्कुलर इशू किया था। उसके अनुसार मतलब उसकी एडजुडिकेशन हर एक एग्रीमेंट का होता है, और जितनी डेफिशिएंसी इन स्टैंप ड्यूटी है वो और बैलेंस एफएसआई की वैल्यू मिला के आपको डिमांड नोटिस दिया जाता है सोसाइटी को। वो भरने के बाद डीम्ड कन्वेंस आदमी आगे रजिस्टर कर सकता है। अब ये एडजुडिकेशन के लिए भी थोड़ा समझ लेना आवश्यक है। एफएसआई तो मार्केट वैल्यू पे मतलब वैल्यूएशन आसानी से हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, 1960 समझ लीजिए 70 की बिल्डिंग बनी हुई है। कुछ फ्लैट 70 में गए, कुछ 80 में गए, कुछ 90 में गए। अब हर एक की वैल्यूएशन अपने अपने प्रकार से होगी। अब एक बात है कि सबसे पहले आप समझ लीजिए, यदि आपके एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो आसान हो जाता है काम। यदि अनरजिस्टर्ड है तो जरा थोड़ी मुश्किल बढ़ जाती है। यदि आपके एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो स्टैंप ड्यूटी इज पेएबल ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू या अपरेंट कंसिडरेशन। ये अपरेंट कंसिडरेशन जो है ना, पहले क्या होता था, 3 जुलाई 1980 तक हम एग्रीमेंट में जो वैल्यू लिखते थे, कन्वेंस में जितना अमाउंट डालते थे, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती थी। अपरेंट कंसिडरेशन के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती थी। लेकिन 4 जुलाई 1980 से बॉम्बे स्टैंप एक्ट में अमेंडमेंट आया, एक डी मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट डाला गया। आपने लिखा हमारा लैंड जो है 3 करोड़ का है और उन्होंने वैल्यू किया 4 करोड़, तो आपको 4 करोड़ के ऊपर ही स्टैंप ड्यूटी लगती थी। तो ये डीम्ड मतलब ये मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट आया 4 जुलाई। यदि आपका एग्रीमेंट 3 जुलाई 80 के पहले का है तो अपरेंट कंसिडरेशन पे स्टैंप ड्यूटी लगनी चाहिए, ज्यादा नहीं, मार्केट वैल्यू पे नहीं। और यदि अब उसके बाद आया 10/12/1985 में अमेंडमेंट आया, क्योंकि बहुत से लोग पहले तो ट्रांजैक्शन 5 रुपए या 20 रुपए पेपर पर लोग करते थे। अब 10/12/85 से आर्टिकल 25 का अमेंडमेंट आया। उसमें उन्होंने कहा यदि आप एग्रीमेंट ओनरशिप एग्रीमेंट करते हैं, उसमें पोजीशन इज गिवन, टू बी गिवन और हैज बीन गिवन, कुछ ऐसे लिखा हुआ हो, तो आर्टिकल 25 को हमने उस ओनरशिप एग्रीमेंट को हम लोग कन्वेयंस ट्रीट करेंगे, और उसके ऊपर चूंकि हम कन्वेयंस ट्रीट करेंगे उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी की लायबिलिटी आ जाती। अब सवाल है, किसी ने 81-82 में फ्लैट लिया, अब उसने एविडेंस, उसको फिर एविडेंस देना पड़ेगा। अब एविडेंस दिया तो स्टैंप ड्यूटी लगेगी ऑन द प्रिवेलिंग। हाँ, एविडेंस इज गिवन देन स्टैंप ड्यूटी ऑन द देन प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू। उस समय 82 में आपने फ्लैट लिया तो 82 की मार्केट वैल्यू पे लगेगी और उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
यदि आपने एविडेंस अपने ऑक्यूपेशन का, रहने का, परचेज करने का नहीं दिया, आपने सपोजिंग फ्लैट परचेज किया है और आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया और वो चेक नंबर आपकी बैंक स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है, तो ये एविडेंस सफिशिएंट है। ये नहीं है बैंक एविडेंस पेमेंट का, तो आपको फिर कोई वहां पर फ्लैट आपने ऑक्यूपाई किया उसका एविडेंस देना पड़ेगा, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट हो उसी फ्लैट का, इनकम टैक्स का ऑर्डर हो, सेल्स टैक्स का ऑर्डर हो, वैट का ऑर्डर हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इस प्रकार के जो प्रूफ हैं जिनको गवर्नमेंट मान्य करती है वो सब आपको एविडेंस देना पड़ेगा। अगर आप एविडेंस दे सकते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी 1982, 83 वगैरह पे लगेगी। जो अब सवाल आता है फ्लैट जो इतने एग्रीमेंट हुए हैं 10/12/85 के बाद के, सपोजिंग कि 1992 का आपने फ्लैट किसी ने लिया है, यदि वो मैंने वैसे पहले बताया एविडेंस दे देता है तो 92 की मार्केट वैल्यू लगेगी, लेकिन 9/12/85 के बाद यदि आपने फ्लैट लिया है, चूंकि स्टैम्प ड्यूटी कंपलसरी थी, मतलब एग्रीमेंट वाज बीइंग ट्रीटेड एज कन्वेंस, इसके लिए स्टैम्प ड्यूटी कंपलसरी थी, आपने नहीं भरी है। 85 के पहले नहीं थी कंपलसरी, लेकिन 10 दिसंबर 85 से कंपलसरी बन गई, इसके लिए आपको एविडेंस देंगे तो मार्केट वैल्यू प्लस 400% पेनल्टी भी लगेगी। यदि एविडेंस नहीं देंगे तो जिस दिन आपने डीम्ड कन्वेंस की एप्लीकेशन फाइल की थी उस दिन की मार्केट वैल्यू लगेगी, फिर पेनल्टी नहीं लगेगी। अब हो गए सब एग्रीमेंट पूरे हो गए तो क्या करना है। एक कई बार सवाल आता है, 2012 का जो इन्होंने सर्कुलर है आईजीआर ने उसमें निकाला है कि जो पुराने एडजुडिकेशन के लिए आपको पुराने एग्रीमेंट नहीं देखनी है, 12/4/2012 के बाद जो ट्रांजैक्शन होती है उसको देखना है, पुरानी ट्रांजैक्शन भूल जाएंगे। अब 12/4/12 तो आज 2021 में हम लोग पहुंच गए। अब एक सवाल उठता है कि यदि किसी परचेजर ने 2020 में फ्लैट लिया और जिससे फ्लैट लिया उसने 2014 में फ्लैट लिया था और उसने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी थी, अब जिसने 2014 में फ्लैट लिया वो पता नहीं कहां चला गया, मैंने फ्लैट लिया था 2020 में, मैंने स्टैम्प ड्यूटी बराबर भरी थी। अब जो आईजीआर जो कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के ऑफिस में अभी तक पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि वो लोग कहते हैं नहीं 2014 की आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, क्योंकि 2012 की जितनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो इस बारे में एक लाजवंती गोदवानी बंबई हाई कोर्ट का केस हुआ जिसमें श्री गौतम पटेल जस्टिस गौतम पटेल ने कहा कि कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है कोई पुराने एग्रीमेंट पे जाए, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उसको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, पुराने जो मेंबर हैं उसके बारे में आप इंक्वायरी नहीं कर सकते। अब ये सारी प्रक्रिया में मतलब एप्लीकेशन फाइल करना, जितनी 4 स्टेज बताई गई हैं, सबसे मुश्किल जो है एडजुडिकेशन है। यदि 100 फ्लैट है तो आप समझ लीजिए हमारी एक सोसाइटी है बेलस्कॉट सोसाइटी, वर्सोवा में 84 फ्लैट हैं, 2.5 साल हो गए हैं, काम अभी आज होगा कल होगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। अब इसमें समस्याएं कई आती हैं। एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट अब ऐसे हैं कि पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, और कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी हैं जो केवल अलॉटमेंट लेटर के आधार पर लिए गए, मतलब लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं। ऐसे एग्रीमेंट वो कहते हैं कि आपने स्टैम्प ड्यूटी भरी नहीं, इसलिए आपको पूरा मतलब प्रॉब्लम खड़ा करते हैं वो लोग। अभी कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट गुम कर दिए। अब कुछ एनआरआईज के केस में उन्होंने फ्लैट लिया, वो साल में एक बार आते हैं, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं, एविडेंस ही नहीं है, उनके पास न ड्राइविंग लाइसेंस है, न रहने का प्रूफ है, न कुछ है, वो दे नहीं पाते। अब ये जो सर्कुलर है 12/4/12 का पार्ट 2.2, जैसे मैंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ये गलत पोर्शन है, और लाजवंती गोदवानी की केस में उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा, गौतम पटेल ने बड़ा वेल रीजन ऑर्डर दिया है, कहा ये नहीं होना चाहिए।
और दूसरी बात क्या होती है, जहां जो फ्लैट्स बिल्डर ने अपने पास रखे हैं उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती। ये थोड़े छोटे मोटे बातें होती हैं एडजुडिकेशन में। अब ये सब स्टैंप ड्यूटी भर दी गई, तो उसके बाद एडजुडिकेशन के बाद डीम्ड कन्वीनियंस डीड पे हम लोग मतलब साइन करवा के रजिस्टरिंग अथॉरिटी को भेजी जाती है। उसके बाद हम लोग डीम्ड कन्वीनियंस में डीडीआर के सिग्नेचर लेते हैं और वो डीम्ड कन्वीनियंस डीड सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी जाती है। अब एज पर द जो 22 जून का जो जीआर है उसके अनुसार यदि बैलेंस एफएसआई नील है और आर्किटेक्ट आपने सर्टिफिकेट दे दिया और आपके सभी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हैं, तो सब रजिस्ट्रार का कर्तव्य बन जाता है कि बिना किसी एडजुडिकेशन के अपने उस डीम्ड कन्वीनियंस डीड को रजिस्टर करें। लेकिन मैंने सुना है कि प्रैक्टिस में ये सब रजिस्ट्रार डरते हैं, पता नहीं क्यों। वो कहते नहीं भाई आप एडजुडिकेशन करवा के लाओ, उसके बाद मैं आपकी डीम्ड कन्वीनियंस डीड को रजिस्टर करूंगा, नहीं तो वो लोग नहीं करते। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डरते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि जो 22 जून का गवर्नमेंट का जीआर है 18 का, उसके अनुसार ऐसी डीड को फिर से कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर को लगा कोई ड्यूटी नहीं भरी है तो वो विथ पेनल्टी वसूल करेगा। पर फिर भी मैंने जैसे कहा ये अक्सर ये ऐसे होता नहीं है। अब उसके बाद एक बार आपकी कन्वेंस डीड रजिस्टर हो गई, इंडेक्स 2 मिल गया, तो आपका 80-90% काम तो हो गया। अब ये आपको इसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड आपके नाम से होना आवश्यक है, तभी आप लीगल ओनर आपकी सोसाइटी मानी जाएगी। इसके लिए सिटी सर्वे ऑफिस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक 23/11/12 में गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला था कि लैंड ओनर्स को और बिल्डर को सिटी सर्वे ऑफिस को नहीं बुलाना चाहिए। यदि डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर अगर मिल जाता है तो डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर मिलने के साथ उनको भी इंटीमेशन जाता है, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, अश्योरेंस और सिटी सर्वे ऑफिस। यदि उनको कोई आपत्ति है तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए डीडीआर को, और उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो नोटिस इशू करें और पार्टीज को बुलाएं। लेकिन ये भी अक्सर देखा जाता है बहुत कम। और इसके लिए आपको चाहिए, यदि आपने सोसाइटी का डीम्ड कन्वेंस लिया है तो कन्वेंस डीड जरा सोच समझ के बनाएं, बहुत केयरफुली बनाएं, और जिस व्यक्ति का नाम प्रॉपर्टी कार्ड में आता है वो आपका मतलब उसका नाम होना आपके कन्वेंस डीड में अत्यंत आवश्यक है। यदि उसका नाम डालेंगे और उसके बाद चेन ऑफ डॉक्यूमेंट बनाएंगे प्रॉपरली सोसाइटी तक, तो ई म्यूटेशन भी हो सकता है। और कई कुछ सब सिटी सर्वे ऑफिसर बहुत अच्छे होते हैं, वो अगर देखते हैं तो ई म्यूटेशन भी करते हैं। पर कई लोग हियरिंग में उनको अच्छा लगता है, हियरिंग बुला के नोटिस देते हैं, उसके बाद ही प्रॉपर्टी कार्ड ट्रांसफर करते हैं। अब क्या किया जाए, ये सब चलता रहता है। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल से आजकल मोफा तो मैंने बहुत चर्चा कर दी, डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझता हूं जब तक हम लोग रेरा के बारे में नहीं बोलेंगे तो शायद ये हमारा विषय कई लोगों को अधूरा लगेगा। अब रेरा में यदि देखा जाए तो सेक्शन 17 है, उसमें कहता है कि प्रमोटर टू एग्जीक्यूट द कन्वेंस ऑफ अपार्टमेंट इन फेवर ऑफ अलॉटिंग। यदि बिल्डिंग बनी है तो जो फ्लैट है उसका कन्वेंस परचेजर को मिलना चाहिए, और जो लैंड और जिम, ग्राउंड, पोडियम, फ्लोर वगैरह का कन्वेंस अलॉट मतलब सोसाइटी को मिलना चाहिए। ये सेक्शन 17 है। पर इसको बॉम्बे के जो रेरा रूल है महाराष्ट्र में, उन्होंने काफी डाइल्यूट कर दिया। अब रूल 922 में कहता है पीरियड ऑफ कन्वेंस इन केस ऑफ बिल्डिंग इन ए सिंगल प्रोजेक्ट। यदि एक ही प्लॉट है, एक ही बिल्डिंग है, तो कन्वेंस एक ही सोसाइटी के नाम पर होना चाहिए, और वो ओसी आने के बाद 3 महीने के अंदर उनको कर देना चाहिए। अगेन सवाल आता है फिर
लेआउट में, बट अक्सर जितना कॉम्प्लिकेशन आते हैं लेआउट प्लाट में आते हैं। अब कन्वेंस इन केस ऑफ लेआउट, अब लेआउट में यदि सिंगल बिल्डिंग बनी है या सिंगल विंग बना है तो उस स्ट्रक्चर का ऊपर के स्ट्रक्चर का कन्वेंस सोसाइटी को दिया जाएगा एक्सक्लूडिंग बेसमेंट, पोडियम एंड लैंड, और जितनी कॉमन एरियाज हैं वो अपेक्स बॉडी को उसका कन्वेंस दिया जाएगा। लेकिन एक उसके बाद रूल 9(3) में कहता है यदि प्रमोटर कन्वेंस नहीं देता एज पर रूल 9(2), कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर सकता है और अथॉरिटी प्रमोटर को डायरेक्ट करेगी कि कन्वेंस दो। और उसके बाद जो रूल 9(4) आता है कि उसमें साफ लिखा है कि सोसाइटी कैन आल्सो ऑब्टेन डीम्ड कन्वेंस अंडर मोफा। तो रेरा में भी डीम्ड कन्वेंस अंडर मोफा का प्रावधान है। इसके लिए हमें जरा भी कोई शक, शंका, संदेह, असंदेह, भ्रम विभ्रम कुछ नहीं होना चाहिए और हम लोग आराम से मोफा की जो प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, रेरा डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ डीम्ड कन्वेंस। तो उसमें साफ और रूल 9(4) में क्लियरली लिखा हुआ है कि सोसाइटी कैन आल्सो ऑब्टेन डीम्ड कन्वेंस अंडर मोफा। इसके लिए हमारे ख्याल से जो मोफा में भी चल रहा है, डीडीआर के पास जो ड्राइव चल रही है, ये बहुत अच्छा कदम है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, आप लोगों को मैं आज तक मैंने जितने भी एप्लीकेशन दी हैं लगभग सभी में हमने मतलब ऑर्डर लिया है, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कुछ प्रोसीजर में जैसे स्टैंप ड्यूटी में कहीं कहीं प्रॉब्लम लग जाता है, बाकी डीडीआर के ऑफिस में तो मैंने बहुतों से डील किया। सुभाष पाटिल जी थे, मस्के साहब, महेंद्र मस्के थे, कैलाश देवलिप, सब बड़े अच्छे ऑफिसर हमें मिले हैं। हमने कैंपा कोला का मिस्टर टिकुले ने किया था, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन सोसाइटी के पास ये नहीं है कन्वेंस, मैं उन सबको अर्ज करूंगा कि प्लीज आप अपनी ओनरशिप अधिकार को मत गंवाइए, जितना जल्दी हो सके किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क कीजिए और अपने आप को लीगल ओनरशिप से वंचित मत कीजिए। लीगल ओनरशिप बनेंगे तो आपके बहुत लाभ होंगे। एडिशनल एफएसआई जो मिलेगी वो सब आपको मिलेगी और उसमें बिल्डर कोई आपको दिक्कत अड़चन नहीं पा सकेगा। धन्यवाद। मिस्टर तरते। यस रमानी सर, मेरा लेक्चर तो पूरा हो गया सर वही है, ध्यान पे है, पर हम लोग को अनम्यूट करना था, इसके लिए 2 मिनट रुका दिया हमारा। सर मेनी थैंक्स फॉर गिविंग प्रॉपर लेक्चर, परफेक्ट एंड वेरी गुड। मुझे हिंदी में देना, मैंने हिंदी में देने वही मैं सरप्राइज हुआ। एक्चुअली आप पीपीटी इंग्लिश में था और साथ में हिंदी बोल रहे थे, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप हिंदी में बोल रहे, बहुत अप्रिशिएट। आपने बोला ना हिंदी में बोलना, तो मैंने हिंदी में, पर सामने पीपीटी दिख रहा है इंग्लिश में और आप हिंदी में बात कर, बहुत गर्व की बात बना सका ना। नहीं सो इट इज वेरी नाइस। सबको अच्छी तरह मतलब जानकारी भी हो गई। और एक्चुअली चैट बॉक्स में देखिए तो आपको मोर देन 100 चैट्स आए हैं, सब लोग ने कमेंट्स किया है, बहुत अच्छा लेक्चर हो गया है और नॉलेज गाइडेंस अच्छा मिला है। Now we'll go for the little bit questions asked in chat box as well as some other questions came to me on personal level. So मैं दिनेश चंदेल जी अपने साथ में रमानी साहब जी। सर अपन अभी have got no panel of 4 persons, yourself, then Chandel sir ji, deputy staff from Mumbai, and मेरे से कीर्ति नागदा जी who is from Bombay. So मैं क्वेश्चन एक को अलर्ट करूंगा और आप उसके हिसाब से आपको जवाब देने का चाहिए कोशिश करेंगे। आपको तो थोड़ा पीछे रखूंगा, पहले नागदा जी और चंदेल साहब को छोटे क्वेश्चन थे, वो जो कॉम्प्लीट क्वेश्चन है वो आपको रख दूंगा सर। सो द क्वेश्चन फर्स्ट कम्स फॉर चैट बॉक्स ओनली। चंदेल सर आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। चंदेल सर हाँ सर, यस सर, चंदेल सर अनम्यूट हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर डीम्ड कन्वेंस। हाँ चंदेल सर क्या बोला? विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डीम्ड कन्वेंस। चंदेल सर के लिए क्वेश्चन है। डीम्ड कन्वेंस का एप्लीकेशन जब डीडीआर सर के पास करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है? ये क्वेश्चन है सर।
I will answer, sir. Yes. Please correct me if I get wrong, sir. No problem. बाकी काफी पैनलिस्ट अपने पास नादा जी हैं, रमानी साहब हैं, आपको कुछ होएगा चीज बता देंगे. Yes, sir. Sure. Go ahead. Thank you. फॉर्म 7 में डीम कन्वेंस का एप्लीकेशन रहता है, वो आपको करना है, और उसके साथ आपको 2000 रुपीज 2000 का कोर्ट फी स्टैंप है. सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है. फिर सोसाइटी लैंड का 7/12 उतारा जो लेटेस्ट है विद इन 3 मंथ्स का 7/12 उतारा, वो आपको अटैच करना है. फिर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, स्व प्रतिज्ञा पत्र, कि जिसके ऊपर आपने लिखा होता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ट्रू एंड करेक्ट है. तो ये एप्लीकेशन, ये स्व प्रमाण पत्र कौन देता है? तो जनरली सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी देते हैं, और इसके लिए उनका रिजोल्यूशन लगता है कि ये चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को हम ऑथोराइज करते हैं कन्वेंस का ये काम करे. तो वो रिजोल्यूशन की कॉपी भी आपको लगती है. इसके अलावा एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है ओनर और बिल्डर का जो हुआ था वो लगता है. फिर आपको एक ये एनए ऑर्डर रहती है, एनए ऑर्डर की कॉपी अटैच करना होता है. फिर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, बांधकाम परवाना पत्र और बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट अपन जिसे बोलते हैं, सॉरी पत्र ना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और भोगोटा दाखला, ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट. लेकिन अभी अगर आपके पास ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो गवर्नमेंट ने ये भी फैसिलिटी दिया है कि आपका सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो कि आफ्टर डीम कन्वेंस आप ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे और वो जल्द से जल्द प्राप्त करके लोगे. इसके अलावा आपको एक आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट भी चाहिए कि जिसमें सारे डिटेल्स है लैंड के, और जिसमें एफएसआई बैलेंस है या नहीं है. जैसा अभी रमनी सर ने कहा था कि अगर नील एफएसआई है तो डायरेक्टली आप विदाउट एडजुडिकेशन टू जेडीआर आप सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हो. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सोसाइटी ने ओरिजिनल ओनर को नोटिस भेजा है क्या नहीं, उसका प्रूफ आपको देना होगा. इसके अलावा सोसाइटी ने बिल्डर को नोटिस, बिल्डर या प्रमोटर को नोटिस भेजा है क्या नहीं, उसका भी आपको प्रूफ देना होगा. और इसके अलावा फिर कोई भी एक बिल्डर और परचेसर, फ्लैट ओनर का कोई भी एक एग्रीमेंट की कॉपी और सारे इंडेक्स 2 की कॉपी आपको उसके साथ अटैच करनी होगी. एक मैं दूसरी बात बोलना चाहूंगा. हाँ सर बता दीजिए सर. क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जब देखते हैं सिटी सर्वे का जो लैंड में रिकॉर्ड देखते हैं, प्रॉपर्टी कार्ड, उसमें यदि आपको एग्रीकल्चरल लैंड लिखा हुआ हो तो बाद में जरा टाइम बहुत जाता है. मतलब यदि एग्रीकल्चर लैंड है, एरिया बराबर टैली नहीं होता है, तो पहले आपको मेजरमेंट कराना पड़ेगा, फिर एसएलआर को भेजना पड़ेगा, एसएलआर कलेक्टर को भेजेगा, वो अमेंडमेंट होके जब तक एनए होके नहीं आएगा. अभी जैसे चंदेल साहब ने बोला एनए होना चाहिए, पर कभी कभी प्रॉपर्टी कार्ड हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड आज तक लिखा हुआ है. अब तो उसको हमें पहले से ही, मतलब अगर टाइम बच जाएगा, यदि हम उसको मेजरमेंट करवा के अपना प्रॉपर्टी कार्ड एनए करवाने की कोशिश करें तो. Yes, sir. Thank you, sir. Go ahead for the next question given the chart. गिरजी जी, आपके लिए कोई क्वेश्चन देता हूँ आपको ये. How can we do conveyance in case land is on lease and land belongs to trust? हाँ गिरजी जी, लीज पे है और ट्रस्ट का है. सर लीज लैंड और फ्री होल्ड लैंड में डीम कन्वेंस के प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है. खाली नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट जो ऑर्डर मिलेगा वो एक चेंज होता है, क्योंकि फ्री होल्ड लैंड में डीड ऑफ कन्वेंस होता है और लीव होल्ड लैंड में असाइनमेंट डीड होता है. तो उतना ही फर्क है. और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि इफ द लैंड बिलोंग्स टू द ट्रस्ट, तो आपको देखना चाहिए कि अगर जब भी ट्रस्ट से डेवलपर ने खरीदा या डेवलपर ने डेवलपमेंट राइट लिए तो ऑलरेडी उसने चैरिटी कमिश्नर का ऑर्डर लिया होगा. तभी अगर वो ऑर्डर है और अगर वो ऑर्डर में फ्लैट बेच के सोसाइटी बनाने का वगैरह का अगर उसने ऑर्डर लिया है तो आपको फिर एक यहाँ डीम कन्वेंस का जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तब वो ट्रस्ट को एक पार्टी बना दीजिए, आप चैरिटी कमिश्नर को पार्टी बना दीजिए, एंड दैट वो एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस होता है. आपको अलग से फिर से परवानगी लेने की जरूरत नहीं है. यस कीर्ति जी, आपका राय बराबर है. एक रमेश आप एक
ये चैरिटी परमिशन लेने का तो बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने, मतलब उसको यू कैन मेक द पार्टी आल्सो, वेरी नाइस आइडिया। पर ये लीज लैंड में कन्वेंस शायद नहीं होता है, कैन यू गिव ओपिनियन रमानी नहीं सर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यस यस यस। अब जैसे देखिए, जैसे बांद्रा में बैंड स्टैंड है ना, जहाँ पर यहाँ पर होटल है, ताज होटल, ये सारी जमीन कलेक्टर की है और इसमें काफी डिस्प्यूट चल रहे थे। वो सारे लैंड जो है कलेक्टर के हैं। मैंने कॉन्कॉर्ड सोसाइटी, सिल्वर नेस्ट सोसाइटी उसमें लिए हुए हैं, काफी लिए हुए हैं, और उनमें हमने कलेक्टर ऑफ लैंड को रिकॉर्ड को प्रॉपर मतलब पार्टी बना दिया था। और यदि उसके अंदर ऐसा होगा कि ओनरशिप ऑफ द स्ट्रक्चर विल गो टू द सोसाइटी एंड लीज होल्ड इंटरेस्ट विल गो टू द सोसाइटी, जो बैलेंस टर्म होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मैंने बताया ना, बिल्कुल सही है कि लीज होल्ड राइट, अगर जो राइट्स इस समय एग्जिस्टिंग है एज पर द, सपोज 90 इयर्स की लीज, 99 इयर्स की लीज थी, 39 इयर्स पूरे हो गए, तो बाकी आपको जो सोसाइटी को मिलेगी अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ लीज मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वैसे उतने। ओके ओके ओके। हमारे डोमली में काफी लीज लैंड है, तो हम लोग लीज लैंड होने की वजह से कलेक्टर लैंड ही है, तो मतलब वी आर अनएबल टू प्रोसीड बिकॉज़ नहीं, मैंने आपको बताया था कॉन्कॉर्ड सोसाइटी में जो पहली बार हमने किया, तो वो बोल रहे थे ऐसा कोई हमारे सामने आया ही नहीं आज तक केस। तो मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ, तो आखिर उन्होंने दे दिया अच्छी तरह से। बाद में तो दूसरे भी आ गए थे। डोमली पीपल, I'll advise Dombli people whose land is collected and to contact Mr. Ramani only. That is better. Yes. Ramani has got the branch office at Dombivli now. है ना, मेरी ऑफिस ही, मेरी ऑफिस है वो। Going to next question, sir. संजय सर को next question मैं पूछ रहा हूँ। If we apply online, most of times portal doesn't work. ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो ऑनलाइन का पोर्टल है काम नहीं करता है, तो व्हाट टू डू एंड हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स? यस सर, चंद्र सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। यस सर, ये आपने सही कहा। ऑनलाइन में बहुत बार मुश्किलें आती है, लेकिन मैं आपको आज का स्टेटस बता दूंगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम है भी आपको, तो आप ऑफलाइन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो डीडीआर सर के पास। डायरेक्टली यू कैन गो टू डीडीआर ऑफिस एंड सबमिट योर एप्लीकेशन ऑफ डीम कन्वेंस टू डीडीआर सर। हमारी इसमें डीडीआर सर किरण सोनोने सर से पूरा डिस्कशन हो गया है, और हम सभी को यही कहते हैं, अगर आपको ऑनलाइन अगर प्रॉब्लम आती है तो हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैरेलल हम ऑफलाइन उनका एप्लीकेशन सबमिट करके लेते हैं डीडीआर सर के पास। बॉम्बे हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, यदि ऑनलाइन नहीं होता है तो ऑफलाइन भी लेना पड़ेगा। ओके ओके, वेरी नाइस, गुड वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। काफी ये प्रॉब्लम आता ही है। अच्छा, और ऑनलाइन होने तक हम राह भी नहीं देखते, हम उसका प्रोसेस स्टार्ट भी कर देते हैं सर। ओके, थैंक यू सर, वेरी गुड गाइडलाइन। सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में आया है, पर ये क्वेश्चन सिर्फ रमानी साहब के लिए स्पेसिफिक है, जरा डीप लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। इफ द सूट फॉर कन्वेंस इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय द सिटी सिविल कोर्ट इन फेवर ऑफ द सोसाइटी एंड द बिल्डर हैज चैलेंज्ड बिफोर हाई कोर्ट which is pending since last 10 years, can we still go for deemed conveyance? ऐसा है कि इस सोसाइटी से यदि आपको पहले केस विथड्रॉ करना पड़ेगा, अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो दूसरी बार नहीं जा सकते। ओके, मतलब बिल्डर ने अगर हाई कोर्ट में चेंज किया तो हम अटक गए। बिल्डर तो, मगर इसका मतलब जो सोसाइटी को अगर कन्वेंस ऑर्डर मिला है सूट में, तो पहले तो विथड्रॉ करना पड़ेगा केस। वो इस हालात में बड़ा मुश्किल है, फेवरेबल ऑर्डर मिलने के बाद कौन करेगा? नहीं, बिल्डर ने उसको चेंज किया ना हाई कोर्ट में, इसीलिए बोलता हूँ बिल्डर तो मतलब विथड्रॉ नहीं करेगा, तो सोसाइटी को विथड्रॉ करना पड़ेगा, तो जाएगा। पैरेलल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, या तो कोर्ट में जाओ या तो सिटी से इधर। ओके ओके ओके, डीम करने। मैं इंटरप्ट करता हूँ सर, मैं इंटरप्ट करता हूँ थोड़ा। यस सर, उसमें एक आइडिया ये भी है कि अगर आपके पास ऑलरेडी डिक्री है और डिक्री के ऊपर अगर स्टे नहीं दिया है हाईकोर्ट ने, तो आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में जहां से डिक्री पास हुई थी वहां एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन निकाल सकते हैं और वो एग्जीक्यूट करके देते हैं, और वो खुद ही कन्वेंस अभी रजिस्ट्रार के पास से करा के देते हैं। पर ये मैटर यदि हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उन्होंने स्टे वगैरह लिया हुआ हो, तो कैसे मालूम पड़े? ये अगर है तो कुछ नहीं कर सकते सर, अगर स्टे नहीं है तो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नागदा जी, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई थिंक विल गो फॉर 2-3 मोर क्वेश्चंस, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़े जो स्टार्ट भी आए उतने लेते हैं, 2-3 और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है नागदा जी, इवन इफ कन्वेंस इज डन, स्टिल लैंड इज नॉट ट्रांसफर्ड इन नेम ऑफ द सोसाइटी, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द सेम?
Yes, कुछ नादर, ये इसमें दो चीज ये है। क्वेश्चन बॉम्बे का बॉम्बे एक सेकंड, आई इंटर एक सेकंड इंटर ये बॉम्बे में सिटी सर्वे है और आफ्टर बॉम्बे देर आर 7/12, दोनों जगह अलग अलग चीज है। और कोई जगह हमारे यहाँ ऐसे कि अभी 7/12 डिस्काउंट होके सिटी सर्वे भी आ गया है, तो हम लोग 7/12 की जगह से बदली करना चाहते हैं, तो जस्ट हाईलाइट ऑन दिस क्वेश्चन। यस सर। का कुछ पोर्शन रामानी सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मगर फिर से मैं बताता हूँ कि कन्वेंस रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सिटी सर्वे में एक्चुअली अप्रोच होना चाहिए। अभी ऐसा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चल रहा है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो कैसे है कि जैसे आपका कन्वेंस रजिस्टर हुआ ऐसे का ऐसे आपका म्यूटेशन एंट्री सिटी सर्वे ऑफिस में पास हो जाना चाहिए। मगर बहुत टाइम में दोनों के पोर्टल एक साथ चलते नहीं है, सिटी सर्वे का पोर्टल चलता नहीं है, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल चलता है, तो वो लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो पोर्टल नहीं भी चलता है सिटी सर्वे का तो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करके आपको दे देते हैं। तो फिर फिजिकली जाके वहाँ एप्लीकेशन करना चाहिए सिटी सर्वे ऑफिस पे जाके, और अपना प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो ट्रांसफर करना चाहिए। आपके वहाँ अगर 7/12 है तो 7/12 ट्रांसफर कर लेना चाहिए। ओके ओके, वेरी गुड। किसी से एक छोटा और आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एकदम सिंपल है पर जरा सा ट्विस्टी है। कैन बिल्डर पुट ए क्लॉज इन द एग्रीमेंट कॉन्ट्री टू द कन्वेंस ऑफ द लैंड टू सोसाइटी? एक है और इसको कनेक्टेड है, एक सेकंड, इसको ऐसा भी है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर अपार्टमेंट रहेगी तो उसका कन्वेंस हो सकता है क्या? यस प्लीज सर, जो बिल्डर है वो ऐसा क्लॉज तो नहीं डाल सकता क्योंकि वो मोफा के एग्रीमेंट के खिलाफ है, मोफा एक्ट के खिलाफ है। तो बिल्डर ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाल सकता है कि आप कन्वेंस नहीं ले सकते करके। अभी बात रही अपार्टमेंट की, तो अपार्टमेंट में तो क्या होता है कि जैसे डीड ऑफ डिक्लेरेशन रजिस्टर हुआ महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 में, तो इंडिविजुअली सबका कन्वेंस हो गया अनडिवाइडेड पोर्शन का, जिसका जिसका जितना जो शेयर है अनडिवाइडेड शेयर इन कॉमन एरियाज एंड एमिनिटीज का, तो ऑटोमेटिक वो कन्वेंस उतना शेयर का हो जाता है। तो फिर आपको फिर से कन्वेंस की जरूरत नहीं है। ओके ओके, गुड गुड। सर थोडंसं थोडी बोला बोला। क्वेरी हाँ होती सर, हाँ सर। की बऱ्याच वेळा एग्रीमेंट मध्ये बहुत बार एग्रीमेंट में बिल्डर ये क्लॉज डालता है कि आप फेडरेशन के थ्रू ही कन्वेंस ले सकते हो, इंडिविजुअल सोसाइटी का ले नहीं सकते आप। हालांकि हालांकि सर्कुलर ऐसा है कि इंडिविजुअल सोसाइटी का भी कन्वेंस हो सकता है, तो ये कंडीशंस करेक्ट है क्या, मतलब लीगल है क्या? मैं ये थोड़ा बताता हूँ आपके लिए। हाँ, मैं इसके लिए मैं जरा ये बहुत 22 जून का जो 18 का सर्कुलर है ना, वो थोड़ा उसके साथ समझना चाहिए। अगर सपोजिंग मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बहुत बड़े लेआउट में किसी बिल्डर ने 7 बिल्डिंगें बनाई हैं और नीचे उसने कार पार्किंग बनाई है, ऊपर पोडियम के ऊपर 7 बिल्डिंगें पोडियम के ऊपर है। जितनी भी कार पार्किंग है, एक बहुत बड़ा पोडियम बना के उसके नीचे कार पार्किंग है। अब उसने नीचे पोडियम के नीचे अपना जिम बनाया है, दूसरी फैसिलिटीज दी हुई हैं, कार पार्किंग। अभी आप बिल्डिंग ए में रहते हैं लेकिन आपकी कार पार्किंग बी में है, सी में है, डी में है, ई में है, अलग अलग जगह है। जिम भी नीचे सबके लिए कॉमन है, सब पोडियम, मतलब उसके ऊपर सभी 7 की 7 बिल्डिंगें पोडियम के ऊपर बनी हुई है। तो ऐसे हालात में बिल्डर जस्टिफाइड होगा कि लिखे कि भाई मैं आपको जो सोसाइटी का जो कन्वेंस है वो इंडिविजुअल दूंगा, और अपना जो रूल 9 है ना, अपना रेरा का रूल 9, उसमें भी यही लिखा है कि ऐसे हालात में हर एक बिल्डिंग का जो कन्वेंस है बिल्डिंग इंडिविजुअल बिल्डिंग को मिलेगा, उस सोसाइटी को मिलेगा। जो पूरा जो लैंड एंड बिल्डिंग कॉमन एरिया सब मिला के वो एक एपेक्स सोसाइटी को दिया जाएगा। उस हालात में बिल्डर पर ये इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, वहां पर क्या पोजीशन है कि जो डिवाइड नहीं हो सकता तो क्या किया जाए। इसके लिए कॉमन एरियाज को अपेक्स बॉडी बना के उसको सारा कन्वेंस देना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सर। जनरल साहब, आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है। क्वेश्चन ऐसे, एज एक्सप्लेन्ड बाय मिस्टर रमानी, द प्रोसीजर फॉर डीम्ड कन्वेंस इज नॉट डिफिकल्ट, मे बी टाइम कंज्यूमिंग, हाउएवर इन रियलिटी व्हाई डज इट टेक लॉन्ग टाइम एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव? नाही तर 2000 रुपयाचा कोर्ट फी स्टॅम्प आणि 100 रुपयाचा स्टॅम्प पेपर एवढंच गोष्टी आहेत. बऱ्याच वेळा असं होतं की डॉक्युमेंट्स कंप्लीट नसतात किंवा बिल्डर प्रमोटर हिअरिंगला अपियर होतात
किंवा मूळ ओनर जो असतो, मूळ मालक जमिनीचा, तो अपियर होतो. तो बऱ्याच वेळा त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्शन घेतो की माझं बिल्डर बरोबर झालेलं अग्रीमेंटच प्रॉब्लेम आहे किंवा ते कॅन्सल झाले वगैरे वगैरे बऱ्याच गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे या हिअरिंग लांबल्या जातात. त्यामुळे वेळ लागतो. पण अदरवाईज मला नाही वाटत. आपण जर ओव्हरऑल एक डीडीआर लेवलचं जर पूर्ण एक आपण हे पाहिलं किती केसेस आहेत आणि किती डिस्पोजल आहे वगैरे, तर जवळजवळ 90% डिस्पोजल हे विदिन 2 to 3 months आहेत. 3 months, 4 months at the most. At a large आपण हे म्हणू शकतो की फास्ट डिस्पोजल आहे. पण काही केसेस या गोष्टी घडतात नाही असं नाही, पण त्या केसचे सर्कमस्टन्सेस तसे असतात. ओके ओके कीर्ति जी एकदम सादा क्वेश्चन है. ऐसे है कि कीर्ति जी प्लीज सर, वी बॉट फ्लैट इन 2014 till now builder not handed over any documents to society nor conveyed it is happened but society registered done. Now what to do as water property electricity in builder name? हाँ जी कीर्ति जी. अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो आप राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में एक्ट के अंतर्गत आप एप्लीकेशन करिए बीएमसी में, फिर बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में आपको पूरा फाइल मिल जाएगा, आपको ऑल द रिकॉर्ड्स मिल जाएगा जो नेसेसरी है यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए. आखिर आप सिटी सर्वे ऑफिस में आप प्रॉपर्टी कार्ड निकाल दीजिए और आपकी एग्रीमेंट की कॉपियां चाहिए वो आपके पास है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए वो आपके पास है, 2000 रुपए का कोर्ट फी स्टैम्प चाहिए. तो जो बेसिक जो पेपर चाहिए वो आपको बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट से मिल जाते हैं और मेरा अनुभव है पर्सनली कि वो मिल ही जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है. पेपर आपको मिल जाते हैं, ओनली आपको एफर्ट्स करना पड़ता है, ढूंढवाना पड़ता है, मगर पेपर मिल जाते हैं. यस रमन सर, ये मुझे डुमली का क्वेश्चन है. अभी मेरे को इन शॉर्ट आई शुड रिप्लाई बट फिर भी आज क्वेश्चन है मैं पूछने वाला हूँ, इसके लिए जवाब आपको है. तो सिंपल है. 2 of our members had paid stamp duty but did not register agreement. सुन लीजिए, मतलब किसी ने पहले खाली ड्यूटी भरा है, उसको रिवीजन में चिक्का मार के ले लिया है. लेटर दे डिड गिफ्टेड एंड रजिस्टर्ड द एग्रीमेंट. वो गिफ्टेड रजिस्टर करके लिया. वी आल्सो गॉट डीडीआर ऑर्डर फॉर डीम कन्वेंस. कैन वी गो फॉर एडजुडिकेशन? प्लीज गाइड. हमारे डुमली वालों को एक क्वेश्चन है. ड्यूटी भर के रखा है 10 साल पहले 2 जन ने. तो किसके लिए क्वेश्चन है? वो आपके लिए खास आपको भेजता हूँ. स्पेसिफिक डुमली ब्रांच है. 2 of our members had paid stamp duty but did not register the agreement. तो इसके बारे में आगे कैसा? एडजुडिकेशन में क्या है? हाँ. जो कलेक्टर के पास जितने भी केसेस एडजुडिकेशन के जाते हैं उनको अधिकार है केवल स्टैम्प ड्यूटी के बारे में जानने का, न कि रजिस्ट्रेशन का. ख्याल अगर स्टैम्प ड्यूटी सबकी भरी हुई है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं है, तो भी वो लोग आपको एडजुडिकेशन करके देंगे डॉक्यूमेंट. अच्छा, अभी इसमें दूसरा कंटिन्यूअस क्वेश्चन है कि आफ्टर दे डिड द गिफ्ट डीड, उन्होंने पिताजी ने लड़के को गिफ्ट डीड कर दिया है, अब वो एडजुडिकेशन जाना चाहते, व्हाट इज द ड्यूटी मेथड? उसको करंट एग्रीमेंट गिफ्ट डीड करके पहला वाला खाली ड्यूटी. हाँ. अपना 12/4/12 का जो हम लोग जो आईजीआर ने सर्कुलर निकाला है, उसमें लिखा है यदि किसी ने परचेज किया है वो, उसमें गिफ्ट इज नॉट ट्रीटेड एज अ परचेज. अगर 12/4/12 का आप सर्कुलर देखेंगे ना आईजीआर का, उसमें यही लिखा है कि परचेज वाला देखना है उनको, तो वो दे विल बी जस्टिफाइड इन सेइंग गिफ्ट इज नॉट अ परचेज. ओके 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 गुड. अभी 2 कंटिन्यू आपको एक क्वेश्चन भी देता हूँ सर, वेरी अच्छे है. एक ऐसा है, इज जीप कन्वेंस बी चैलेंज इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? रमनी सर जी, डीम कन्वेंस के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है क्या? हाँ, रिट पिटिशन बहुत फाइल की हुई है, बहुत बड़े बिल्डरों ने, कई लोगों ने फाइल की हुई है. ओके 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 गुड गुड गुड. द अनदर क्वेश्चन है, आई हर्ड इन मे दैट न्यू लॉ इज बीइंग मेड, कन्वेंस डीड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. ये गलत है, एकदम गलत. किसी ने ये व्हाट्सएप मैसेज गए और लोग खुश हो जाते हैं. वो तो बोलते हैं कि नॉमिनी बिकम द ओनर, इतना व्हाट्सएप गया, सब गलत है. नो रिक्वायर्ड, सब गलत बात है. सर मी एक प्रश्न विचार. यस सर, यस बोला ना. यस नाही, सगळ्यांना नॉलेज चांगलं होईल. सर एक क्वेश्चन था सर, अगर 5 फ्लोर तक का सैंक्शन प्लान है और बिल्डर ने 2 फ्लोर इलीगल कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो कन्वेंस पर किस टाइप का कैसा हो सकता है सर? एक्चुअली उनको जो कन्वेंस मिलना चाहिए अप टू 5 फ्लोर ही मिलना चाहिए. सही बात है. एक सिंपल क्वेश्चन है, उसको कोई बात नहीं है. आपके नाम से पढ़िए रमानी सर.
we have done conveyance deed but not conveyance deem. It is okay or to make deem again? नहीं तो कन्वेंस की कोई बात ही नहीं है. नहीं उन्होंने कन्वेंस किया तो बस हो गया, कोई इसको वापस क्वेश्चन डालने के बाद बात नहीं. उन्हें कन्वेंस डीड है तो ठीक है ना, खत्म हो गया, कोई बात नहीं. Already there is a conveyance. Is the name of the in the name of the society? We have indexed to in the name of the society, but property card is not in the society. How we would go for a deed development? उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कार्ड शिफ्ट करके चेंज करवाना चाहिए ना. अगर इंडेक्स टू है कन्वेंस डीड रजिस्टर्ड है तो वी हैव टू अप्लाई टू द सिटी सर्वे ऑफिस या रेवेन्यू अथॉरिटी से प्रॉपर्टी कार्ड अपने नाम से करेंगे तो ही रीडेवलपमेंट कर सकेंगे ना. Yes, maybe we should get the property card transferred in any way. I think we are coming to the end. एक आध दूसरा क्वेश्चन क्या है, और काफी क्वेश्चंस मुझे कीर्ति नागदा ने खुद ने भी सोचे थे, पर नाउ टाइम इज कमिंग, मतलब काफी टाइम लंबा हो गया. एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, इज लैंडओनर सिग्नेचर रिक्वायर्ड फॉर डीम कन्वेंस? कोई सवाल ही नहीं आता है उसमें, लैंडओनर का सिग्नेचर है, बिल्डर का सिग्नेचर रखता ही नहीं है. एक सिंपल है, इफ एनी फ्लैट हैज यार फिर से इज लैंडओनर सिग्नेचर रिक्वायर्ड, इज लैंडओनर सिग्नेचर रिक्वायर्ड फॉर डीम कन्वेंस? कोई सवाल ही नहीं. लैंडओनर का साइन मांगता है क्या? डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को पावर है, ही कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ लैंड ओनर एंड डेवलपर एवरीबॉडी. इसमें और एक अच्छा क्वेश्चन, इफ एनी फ्लैट हैज लीगल डिस्प्यूट कैन सोसाइटी अप्लाई फॉर डीम कन्वेंस? वेरी नाइस क्वेश्चन. मतलब मेरे भाई और मेरे में झगड़ा चल रहा है तो लीगल ओनर है, ही विल बी पार्टी ना, उसके नाम पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको. ओके ओके, वेरी परफेक्ट क्वेश्चन है. all agreements required at time of conveyance processing, but it is required latest agreement or first agreement with the builder. All agreements required at time of conveyance processing. अच्छा, पहला एग्रीमेंट चाहिए या लेटेस्ट एग्रीमेंट चाहिए? एक अच्छा क्वेश्चन है. कन्वेंस के लिए समझो चेन में 4 एग्रीमेंट है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑल एग्रीमेंट्स आर रिक्वायर्ड और ओनली लास्ट एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड. इनिशियली केवल एक ही एग्रीमेंट की आवश्यकता पड़ती है. जब हम लोग एडजुडिकेशन में जाएंगे फिर सबकी जरूरत पड़ेगी. ओके ओके. बट आई थिंक कीर्ति जी, आपको क्या लगता है, सब हम लोग तो नहीं, काफी केस में चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं देते एडजुडिकेशन डीम कन्वेंस केस में. डीम कन्वेंस जब भी हम लोग फाइल करते हैं ना एप्लीकेशन, तो हमको एक हाँ. ही कोई भी एक फॉर्मेट देना चाहिए कि भाई ये एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में डेवलपर ने हमको ये बेचा है करके. बट एट द टाइम ऑफ एडजुडिकेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और उसमें भी 2012 के पहले के जो है वो डॉक्यूमेंट देने चाहिए. या एग्जैक्टली, दिस इज इंपॉर्टेंट. वो जो हाईलाइट कर दीजिए. नहीं मिस्टर तरते, ये 2012 की जो बात की ना, उसमें एक लाजवंती गोदवानी का बॉम्बे हाई कोर्ट का गौतम पटेल का जजमेंट है. आपने बताया, ओल्ड वन, दे हैव टू आस्क द करंट पर्सन ओनली. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. लाजवंती गोदवानी का जजमेंट है, अभी रिसेंट जजमेंट है. ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, पंकज चिड़ा करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा है. एक सेकंड चैट बॉक्स में निकल गया वो. एक सेकंड, पंकज चिड़ा क्या पूछ रहे हैं? लास्ट में पंकज चिड़ा, इफ एनी वन ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स नॉट प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट कोऑपरेटिंग फॉर कन्वेंस प्रोसेस, हाउ कैन सोसाइटी रिजॉल्व दिस इशू? अगर एक आदमी उसमें डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो उसका ड्यूटी का सोसाइटी कैसे सॉल्व करेंगे? कीर्ति जी, चांदेल साहब का जवाब देना चाहिए. हाँ, बट ही इज नॉट करेक्ट विद स्टैम्प ड्यूटी सर. उसका स्टैम्प ड्यूटी का सवाल ही, मेन तो स्टैम्प ड्यूटी भरने का सवाल आएगा ना सर. यस, सर बेसिक लोग ये भूल जाते हैं कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रहते हैं, कोऑपरेशन करना चाहिए. ये कोऑपरेशन का बेसिक फंडा ही लोग कुछ कुछ भूल जाते हैं सर. अभी हर बार हम अपने ही बिल्डिंग के कुछ लेने वालों पे अगर कानून का ये करेंगे तो अच्छा नहीं रहता. तक मुझे लगता है कि चेयरमैन सेक्रेटरी ऐसे होने चाहिए, लाइक अ ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी, कि उन्होंने उनको कन्विंस करके उनके कहने से डॉक्यूमेंट निकाल के लेने चाहिए. कोऑपरेशन का असली मतलब तो यही है. यस सर, भाई बंधु. ठीक है, टैगरेंज करके है, उन्होंने पूछा लैंडलॉर्ड इज नॉट कोऑपरेटिंग, तो लैंडलॉर्ड को कोऑपरेटिंग का सवाल आता ही नहीं है. पर एक उस सवाल नहीं आता. हाँ, पर यस है. एक मेरा क्वेश्चन उसमें ऐसा छोटा सा आ रहा है, कभी लास्ट क्वेश्चन इसके बाद ये, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि लैंडलॉर्ड कोऑपरेट नहीं करता, और हमारे यहाँ जैसे है कि 50% फ्लैट्स आर गिवन टू लैंडलॉर्ड. तो हमें समझो 40 ब्लॉक की बिल्डिंग भाई 20 ब्लॉक लैंडलॉर्ड को दिए, 20 में से 10 उसने बेच भी डाले, उसका एग्रीमेंट अपने पास आ गया, 10 उसने उसके पास रखे हैं, वो रेंट में दे दिए. अभी उसको कैसे कन्वेंस में जाएंगे? जस्ट हाईलाइट ऑन दैट. कीर्ति जी पहले आप देख लीजिए, आप जवाब दीजिए. अभी देखिए 40 फ्लैट की बिल्डिंग है, सो एक वापस सुन लीजिए. 40 फ्लैट की बिल्डिंग है, 20 फ्लैट लैंडलॉर्ड को मिले हैं, 20 फ्लैट बिल्डर ने बेचे हैं. बिल्डर का तो सब रजिस्ट्रेशन मिल गया है, बाकी 20 में 10 लैंडलॉर्ड ने बेच डाले हैं, और 10 शॉप से नीचे जो उसने रेंटल में दे के रखे हैं.
अब उसको क्या करे, हाउ टू गो फॉर द कन्वेंस? उसको अनफोल्ड प्रीमाइसेस गिना जाएगा। तो अनसोल्ड को ड्यूटी अनफोल्ड तो भरने उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा, जब भी बेचेंगे तभी स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे उसके ऊपर। सर व्हाट इज द अनसोल्ड नाउ? वन सेकंड, क्योंकि वो तो भाड़ा खा रहा है, लैंडलॉर्ड तो भाड़ा रेगुलर खा रहा है। सर मगर काफी बड़ा लैंडलॉर्ड भाड़ा है, लैंडलॉर्ड ने बेचे नहीं है तो अनफोल्ड है, वो फ्लेट अनफोल्ड है लैंडलॉर्ड के पास। सी सॉरी टू इंटरप्ट टू ऑल टू बिग शॉट्स लाइक यू, बट हम जब एडीजे में जाते हैं तो वो सुनता नहीं है, बोलता है अनसोल्ड का प्रूफ क्या दोगे आप? 20 में 10 तो पेज दे रहे हैं, 10 एग्रीमेंट आप छुपा रहे, एग्रीमेंट 10 के भी पेज डाले आप छुपा रहे हैं, ऐसा है। आप विदाउट ड्यूटी पेज डाले हैं, कुछ भी समथिंग लाइक जेडीआर उसको ऑब्जेक्ट करता है, भैया 10 अनसोल्ड में तो नहीं, एक आधा फ्लैट है जो लैंडलॉर्ड खुद को रहने को लेता है या 2 रहता है, ठीक है, 10 शॉप से और अनसोल्ड लिखता है, ऐसे कैसे? वहां दिख रहा है कैफे कैफे चल रहा है, मैकडोनल्ड चल रहा है, वो भाड़े पे लैंडलॉर्ड देख के रखा है, काफी भाड़ा खा रहा है, तो उसकी क्या करें? सर आपका आई फॉर्म और जे फॉर्म प्रोड्यूस कर दीजिए उधर सोसाइटी का, कि हमारे पास देखो मेंबर कौन है वहाँ पे। अगर फोल्ड होता था तो मेंबर बढ़ जाते थे ना हमारे। ओके, आई फॉर्म और जे फॉर्म प्रोड्यूस कर दीजिए उधर। रमन सर आपका क्या राय रहेगा? और दूसरा नहीं क्या, जो जो अपने जहां पर अगर लैंडलॉर्ड ने भाड़ा खा रहा है तो हाँ। उसके हम लोग डॉक्यूमेंट तो वेबसाइट से निकाल सकते हैं कि ये लाइसेंस आ रहा है, ये लाइसेंस ही है, भाड़ा लैंडलॉर्ड ही खा रहा है, इसका ये एविडेंस है। तो मतलब लैंडलॉर्ड को अगर है तो उसको ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अनफोल्ड में बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों पर ये बाकी में हम लोग तो लिविंग लाइसेंस के एग्रीमेंट कई निकालते हैं, जब ये निकाल के मतलब ये अगर हो तो उससे मालूम पड़ जाता है। मेरा एक कैसे हुआ था इधर बिल्डर का, हाँ। तो उसके पास 4 दुकानें अपने पास थी, तो हमने स्टैम्प बहुत बड़ी आ रही थी, हमने बताया अनसोल्ड है। फिर उसने भी ये सवाल पूछा तो हमने लिविंग लाइसेंस एग्रीमेंट निकाला, उसकी कॉपी दिखाई थी, मैंने कहा देखो ये ही इज द बिल्डर लाइसेंस और एंड ही द लाइसेंसी, उसके पास ही है, दिस इज द प्रूफ, तो मान लिया उन्होंने। ओके ओके, एनीवे इसमें डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि बाजू में जो बिल्डिंग है वहाँ लैंडलॉर्ड ने खुद के नाम में ड्यूटी भर के रजिस्टर करके लेके, उसका डेवलपमेंट में रजिस्टर नहीं था, और बाद में उसने करके वो केसे में मेरे पास ही था कि 2 भाई का था, एक भाई ने उसका ड्यूटी भर के खत्म कर दिया और एक कन्वेंस भी हो गया, दूसरा अटक रहा है। एनीवे दैट इज नॉट बिग इशू है, छोड़ दे, इन जनरल इशू नहीं हो। पर इन्हें क्या, अगर डेवलपमेंट में रजिस्टर होता तो वो चल जाता था, यहाँ डेवलपमेंट में रजिस्टर नहीं है करके वो गवर्नमेंट ड्यूटी स्किप हो रहा है, ये बड़ी बात होती है। सर एकदम लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ दिनेश चंदेल सर के लिए, जो काफी हम लोग जो इतना बड़ा सेशन लिया है, और किसी ने पूछा है, नाम मैं भूल गया, चैट बॉक्स में अभी पूछा है करके लेता हूँ कि व्हाट इज द, अभी जो गवर्नमेंट ने ये निकाला है स्कीम 1 से 15, उसमें क्या बेनिफिट्स है? एंड विल क्लोज द इशू। बिफोर दैट आई थैंक एवरीवन हु हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस वर्चुअल मीटिंग। at the moment there are only 88 persons. Before that there were 155 or 160 तक आदमी ज्वाइन हो गए थे। I give a full credit to them, Ramani sir, who has given good lecture and whose name has given us 156 or 167 participants, and also I thanks all those who have given good Ms. Kirti Nagdaji, Chandil sir ji, and Ramani ji, as well as my friend by then day, and all other persons. I request my co-advocate Mr. Jagtap, if he is on the line, Mr. Jagtap, that he can continue after this answer for the vote of thanks. I'm not seeing on the screen him, but still if he's there, I'll give a chance afterwards. Chandel sir lecture to give vote of thanks. Other will conclude the lecture. Chandel sir, yes, please, last question. थैंक यू सर, आपने ये कुछ सवाल पूछा, हालांकि मैं आपको रिक्वेस्ट करने वाला था इसी बात कहने के लिए कि 1 से 15 तारीख तक गवर्नमेंट ने जो डीम कन्वेंस के लिए जो एक प्रोग्राम चॉकआउट किया है, ये पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। काफी लोगों की सोसाइटी से हमको सवाल है कि ये 1 से 15 तक ही है क्या, मतलब 16 तारीख तक देने वाले नहीं क्या? तो ये गलत है। सेकंडली, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब अप्लाई करेंगे तभी डीम कन्वेंस मिल जाएगा क्या? या आज हम अप्लाई करेंगे तो विद इन 15 डेज आपका डीम कन्वेंस हो जाएगा क्या? ये ऐसे कुछ सवाल सोसाइटी से आते हैं। ठीक है, ये बेसिक कुछ उनके क्वेरीज रहते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा की ये पब्लिक अवेअरनेस आहे, ही जनजागृती आहे सर्व सोसायट्यांमध्ये की तुम्ही डीम कन्व्हेन्स साठी अप्लाय करा। जसं रमणी सरांनी पण त्यांच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं की प्रत्येकाने आपल्या जमिनीवर कायदेशीर आपला हक्क प्रस्थापित केला पाहिजे, आपलं नाव सोसायटीचं त्या जमिनीवर लागलं पाहिजे, याच्यासाठी आपण डीम कन्व्हेन्सला जायला पाहिजे, कन्व्हेन्सला जायला पाहिजे, जे काही असेल ते। म्हणून 1 ते 15 मध्ये हे जनजागृती करून जास्तीत जास्त सोसायट्यांना आम्ही अप्रोच करतोय की तुम्ही डीम कन्व्हेन्स साठी अप्लाय करा, आमच्याकडे या तुम्ही, म्हणजे डीडीआर सरांकडे, आणि तुम्ही डीम कन्व्हेन्स तुम्ही तुमच्या जमिनीवर तुमच्या सोसायटीचं नाव लावून घ्या। तर हे याच्यामध्ये प्रोसिजर जी आहे
जी सरांनी सांगितलं, रमणी सरांनी, त्याप्रमाणेच सगळे प्रोसिजर होणार आहे. जो काही वेळ लागणार आहे हा तो त्याप्रमाणेच लागणार आहे. म्हणजे ही ऑनगोईंग प्रोसेस आहे. म्हणजे ही आज आहे, उद्या आहे, ही ऑनगोईंग प्रोसेस आहे डीम कन्व्हेन्सची. पण हे फक्त 1 ते 15 मध्ये आम्ही हे जनजागृती करतोय लोकांमध्ये. त्याचा जास्तीत जास्त सोसायट्यांनी फायदा घ्यावा. आपण आपले जे काही मित्र असतील इतर सोसायटीमध्ये राहणारे त्यांना पण आपण सांगावं आणि या ह्याचा लाभ घेऊन डीम कन्व्हेन्ससाठी आपण अर्ज करावा. धन्यवाद धन्यवाद सर. सर आय कॅन वन मोर सेंटेन्स ऑन दॅट, की आपले स्वतः सोनवणे साहेब सुद्धा आता मेरा बंदरला या लेक्चरसाठी आपल्या गेलेले आहेत असं मी ऐकलंय. एम आय राईट? तुमचं म्हणणं म्हणजे अशा प्रकारे सगळे DDR, सगळे डेप्युटी रजिस्ट्रार ह्या मोहिमेवर जोरात आहे असं मला वाटतं. व्हॉट यू कॅन से? आता आपले सोनवणे साहेब मी थोडक्यात सांगतो. 11 वाजता DDR किरण सोनवणे सर मीरा रोडला लेक्चर देतात ते. 12 वाजता ते भाईंदरला लेक्चर देतात ते. आणि संध्याकाळी 5 का मला वाटतं 5:30 वाजता ते कल्याणला येऊन तिथं लेक्चर देतात ते. आता त्यांनी तिथं फिजिकल हे अरेंज केली आहे, मीटिंग अरेंज केली आहे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह यांनी. पण मला वाटतं तटे सर आपण बाजी मारली की ऑनलाईन सगळ्यांना जमा करून आपण एक लेक्चर अटेंड केलं. आणि थँक्यू. ज्यांचे पुस्तक वाचून आम्ही स्वतः डिसिजन देतो त्यांचं स्वतः लेक्चर अटेंड केलं त्याबद्दल खरंच थँक्यू. सर रमणी सर, सी लिसन, अभी हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार साहब आपका बुक पढ़ के लोगों को ओपिनियन दे रहे हैं. कितना आपका मतलब भाग्य है कि आपकी वजह से सब. यस. थैंक यू Tandel sir, you have shown the book. And once again thank everybody, Nagaraja sir, Ramani sir and Chennai sir for joining meeting. We will leave the meeting. Okay, once again thank you to everybody. Okay. नील.